Yes, Pratik, thank you. Very nice initiative once again. But you see, क्या था कि we quit shipping and we wanted to start something. We tried many things. We failed at 6 7 items, including running a chemical company and making furniture and doing some software training and all that thing. Nothing worked well. So the only thing we thought कि क्या आता है is, जहाज का काम थोड़ा बहुत आता है तो might as well see if we can do ship repairs. So there was we are four of us actually, all four DMAT. So one of our partners, Narayan Padmanabhan, he had sailed with a chief engineer, Mr. Gupta, and he was working with Ramakrishna Engineering, and they are still there. They make O-rings and seals and stuff like that. So we met him, and that's how we started. But we didn't have any office. So we waiting station ka canteen was our office for about 2 years. There was a public phone, over there. तो कैसे तो भी उसका नंबर मिल गया था. So we used to receive phone calls at that number. Somebody standing next to that phone, and nobody. I don't know if all guys will be aware, but उस time एक रुपया वाला एक phone होता था. You put in one, you can speak. So that was meant to only dial. तो हम लोग वहाँ पे receive भी करते थे because we knew that number. That arrangement worked for some time, 2 years actually. So when it was in which year, sir? We started in 1989, 90 actually. I mean, 90 was our first balance sheet. So we started 90 January. Almost like 35 years now, sir. Yes, 35 years. Shailesh sir has been contributing a lot to DMET, and DMET alumni is helping everyone who is. So Varun sir now has left sailing, as is now in real estate. He has been helping a lot of mariners invest, including me, invest in real estate and help them get good returns as well. So Varun is a 2014 DMET alumni only. He's my junior, and like everyone, most of the people are joining here are his seniors. And Varun has been doing some extraordinary work in real estate. So there was a very interesting project that he was discussing with me a few months ago when we met. And when I did some research, because a lot of my batchmates uh, who are in ship supply business or ship repair, allied kind of a thing, they do a lot of business in Bhavnagar, from Bhavnagar. So they also told me that this is a government of India's PM Modi's dream project, and something is happening in Dholera, which is in the lines of what happened in Gurgaon uh, I guess almost 2 3 decades ago. So that kind of industrialization is going to happen. So I requested him, if one day he is free, he can uh, share with the community these things. So Varun is here with uh, to enlighten us what is going on right now in Dholera and what is happening. Because something similar happened in few years ago, if we remember, in Gift City project. So the real estate, my brother invested in Gift City. I did not. At that point of time, I could not. Uh, so uh, so I missed that mark, and eventually my brother made a lot of money by his investment. So I thought, why not Varun can share what is happening and what it can mean for the DMET community. So it will be great. So thank you, Varun, for joining us. And Thank you so much, sir. I guess the stage is over to you right now. Thank you for joining. So, good morning, everybody. So, I'm Varun Jain. I am 2014 pass out DMET. So, I was sailing till 2020 November, and from December 2020, I joined Investors Clinic. So, slowly and gradually, I worked here, and by God's grace and everybody's blessings, I am right now I'm EVP with Investors Clinic. So, currently heading Gurgaon office, and we do have 18 offices across India, and one in Dubai and one in Singapore. So we are expanding now. So now जैसे आज
आज कोई भी रियल एस्टेट की बात करता है तो सबसे पहले कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर होता है वो वर्क करता है विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कि गवर्नमेंट का फोकस किधर है। तो थोड़े टाइम पहले बैठ के मेरा प्रतीक सर के साथ हम बैठे हुए थे, मैं और प्रतीक सर, तो वैसे डिस्कशन हुआ कि कुछ ऐसी चीज बताओ जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हिसाब से हो कि आज वो वैल्यू एडिशन करे हमारे एसेट को और इन्वेस्टमेंट छोटी हो। तो मेरा सर से डिस्कशन हुआ, मैंने कहा सर इसी तरीके का जैसे आपने गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी देखी है कि आज से अगर 20 साल 25 साल पहले देखा जाए तो गुड़गांव में कुछ भी रेट नहीं हुआ करते थे, बट एक गवर्नमेंट का विजन था कि यहाँ पर एक कॉर्पोरेट हब लेके आना है और इंडस्ट्रियल हब लेके आना है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली वी आर अ विटनेस टू दैट। तो आज जैसे आज गुड़गांव मार्केट में 200-300 रुपए गज की लैंड कॉस्ट हुआ करती थी एक टाइम पर 20 साल पहले। आज वही चीज आज 4-4.5 लाख रुपए हो गए इन 20 years। तो दिस इज समथिंग वेरी फिनोमिनल ग्रोथ इन रियल एस्टेट मार्केट कि हमें आज हमेशा गवर्नमेंट के साथ अलाइन होकर चलना चाहिए। तो लाइक वाइज सेम चीज दुलेरा में हो रहा है। तो दुलेरा आज एक इंडिया का एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। Dhulera is one of the cities which has all four connectivities which a city need to grow. Like पहली सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी जो होती है किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, वो एक रेलवे सिस्टम होता है। तो रेलवेज की बात करा जाए तो यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने नॉर्मल रेलवेज की बात नहीं करते हुए पहले दिन पे ही बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करा है। Second, they had made the widest national highway in India for almost two. They are creating. They have already created 90% of the project of 250 wide meter national highway, which is widest in India. Third important thing they are doing, they are creating the second biggest international airport of India after IGI. So again, it's in Dhulera itself. फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से जोड़ती है, दैट इज सी कनेक्टिविटी। एज वी ऑल आर DMETians, so we know how a shipping plays a vital role for any city for their development and infrastructure and creating the job opportunity, which is a marine industry. So यहाँ पर एक इन्होंने पोर्ट डेवलप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गल्फ ऑफ कंबाट आता है। So आज गुजरात के अंदर we have seen a growth story of कांडला and भावनगर। Likewise गुजरात के अंदर ये तीसरा पोर्ट एक बनने जा रहा है, बल्कि इनफैक्ट 2-3 छोटे पोर्ट्स और भी हैं। तो एक बहुत बड़ा पोर्ट बनेगा गल्फ ऑफ कंबाट which will be in Dhulera and they are creating a maritime museum। आज हम जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बाहर जाते हैं, सीमेंस क्लब होता है, तो वो सीमेंस क्लब जितने भी क्लब्स रहते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते इंडिया के अंदर। बुमराह देखो तुम नहाते रहो सो यहाँ पर ये लोग मेरीटाइम क्लब बना रहे हैं, उस मेरीटाइम इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत कुछ अपना रिटर्न कर सकते हैं। बट येस, इट इज अ सिनेरियो फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 years ऑफ होराइजन। या छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे FD की तरह, और इसको हम 10 साल 15 साल के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस पूरे दुलेरा को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे कंपनी में एक वन पर्सन इन द नेम ऑफ मिस्टर लोकेश यादव। सो ही इज करेंटली टेकिंग केयर अबाउट एंटायर दुलेरा। तो मैं आई इनवाइट मिस्टर लोकेश यादव जी, जो हमारे ही कंपनी में ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर हु इज टेकिंग केयर अबाउट दुलेरा। So he will be मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया, he will be explaining you in much more detail about Dhulera. So over to you, Lokesh sir. Thank you, Varun bhai. Thank you. Prateek ji, if you are the host of this meeting, then may I request to put everyone on mute for some time for next 20 minutes? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम unmute कर रहे होते हैं, background noise चल रही होती है। ठीक। एंड सेकेंडली मेरे को एक चीज और बता दीजिए सर, ये हम ऐसा तो नहीं है कि इसमें 45 मिनट्स में अपना ये मतलब वो हो जाए, क्लोज हो जाए, अदरवाइज नहीं, वो तो जब तक माहौल गर्म रहता है तब तक चलती ठीक रहती
ठीक है, हाँ, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइसेंस के साथ में वो चीज़ होता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा हमारे साथ में हो जाता है कि बीच में हम इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन द लिंक गॉट एक्सपायर। नहीं, ये अनलिमिटेड चलिए, ग्रेट। है जूम अकाउंट में। Okay, great, great. So, thank you everyone for joining us on Sunday afternoon. And जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ तो थोड़ा बहुत इसमें अपना इंटरेस्ट या थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रही होगी, जो वरुण भाई ने आप लोगों को बताया था इस प्रोजेक्ट के बारे में। So, as Varun said, my name is Lokesh Yadav, and I'm working as a general manager here in Investors Clinic, and I'm particularly taking care of Dholera Smart City investment portfolio. So, last 1 year से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, and I visited that place countless times. मतलब almost every week I'm there. सो वहाँ की जो 1 साल पहले जो ग्रोथ थी और 6 महीने पहले ग्रोथ थी और आज जो ग्रोथ है, उसमें काफ़ी कुछ रिमार्केबल एंड विजिबल डिफरेंस मैंने देखा है। एंड एट द सेम टाइम द सिटी इज बीइंग प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इटसेल्फ, क्योंकि इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। सो अब इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि आज से 30 इयर्स बैक गुड़गांव, गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी से आप सारे लोग वाकिफ हो गए। तो 30 इयर्स बैक गुड़गांव में डीएलएफ ने, अंसल्स ने प्लॉटिंग करना शुरू किया था, क्योंकि डीएलएफ और अंसल्स को पता चला था कि भाई यहाँ पे मारुति, और मारुति की वजह से 450 उसकी एंसिलरी कंपनीज आ रही हैं, और एक ये इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है सिटी का, या पूरे उस टाइम पे जो गुड़गांव तो गांव ही होता था, मतलब इस एरिया का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया है। तो उस टाइम पे उन्होंने प्लॉटिंग करना शुरू किया था। एंड एज वरुण सेड, उस टाइम पे जो 200 300 या 400 रुपए गज पे जो जमीन थी, वही जमीन आज 4 लाख रुपए, मतलब लास्ट 30 इयर्स में 1000 टाइम्स का एप्रिसिएशन गुड़गांव मार्केट ने दिया है। क्योंकि 35 इयर्स बैक गुड़गांव कुछ नहीं था, सिंपली एक गांव होता था, आज वो एक मिलेनियम सिटी बन चुका है। तो इसी तरीके से ही जैसे गुड़गांव ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक नया सिटी बना रही है जिसको सेमीकंडक्टर हब ऑफ इंडिया बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर हब क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इंडिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर की फैब यूनिट यहीं पे लग रही है, जो कि टाटा एक ताइवान की कंपनी के साथ में मिलके लगा रहे हैं। सो बाकी मैं डिटेल में आपको हर स्लाइड पे करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि मैं एक मतलब 20-25 मतलब 15-20 स्लाइड्स का एक वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो आपको साथ में शेयर करूं, ताकि आपको जो मैं स्टोरी बता रहा हूं उसको आप विजुलाइज करें इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एज वेल। सो प्रतीक जी, आप मेरे को होस्ट राइट दे सकते हैं? सो आपको दैट दे दिया है मैंने होस्ट थैंक राइट। यू। हाँ, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म So now you can see Dholera Smart City, Industrial Greenfield Smart City. So Greenfield, as you know, कि कोई भी प्रोजेक्ट जो स्क्रैच से बनाया जाता है उसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं। मतलब वहां पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं का मतलब मतलब वहां पे जो छोटे छोटे गांव थे वो थे उस एरिया के, जो आज भी हैं, 33 विलेजेस की जमीन को मिला के उसको बनाया गया है। लेकिन सिटी की फॉर्म में कुछ नहीं है, उसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जा रहा है। बिल्कुल जैसे गुड़गांव तो ग्रोथ होता होता चला गया सारे सारे। तो आज जब मुंबई की बात करें या पुणे की बात करें या नोएडा की बात करें, तो इनमें जो एक्सपेंड मतलब अभी एक्सपेंशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट तो आ रहे हैं, लेकिन धुलेरा कंप्लीटली ग्राउंडफील्ड है। अब क्योंकि ये ग्रीनफील्ड है, तो गवर्नमेंट के पास में मौका भी है एंड टाइम भी है कि इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में बसाया जाए। तो इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि जिस कंपनी ने पाम जुमेरा, दुबई, सिंगापुर और शंघाई जैसे 70 शहरों की डिजाइनिंग एंड प्लानिंग की है, उसी कंपनी ने ही धुलेरा की भी डिजाइनिंग एंड प्लानिंग की है। उस कंपनी का नाम है हेल्क्रो। इट्स ए यूके बेस्ड कंपनी। तो हेल्क्रो टुक गुड 5 years टू डिजाइन एंड प्लान दिस सिटी, एंड देन दे सबमिटेड ए प्रपोजल टू गवर्नमेंट कि हम इस तरीके से इस सिटी की डिजाइनिंग एंड प्लानिंग करके आगे लेके चलना चाहते हैं। तो ये आपका ग्रीनफील्ड भी है, स्मार्ट सिटी भी है। अब क्योंकि यहाँ पे मतलब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी रहेंगी और इंडस्ट्रियल सिटी रहेगा, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सिटी है ही। सो इट्स ए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। अब कोई भी जब इंडस्ट्रियल सिटी बन रही होती है तो उसमें 4-5 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसकी लोकेशन क्या है, दूसरा उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन क्या है, तीसरा उसमें कनेक्टिविटी कैसी है, चौथा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पांचवा वहाँ पे प्रोजेक्ट्स किस तरीके के आ रहे हैं। क्योंकि ये पांचों चीजें अगर मतलब अलाइन होंगे तो सारी चीजें सक्सेसफुली टेक ऑफ होंगी। तो मैं सारी चीजों को वन बाय वन कमिंग स्लाइड्स में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ।
अगर लोकेशन की बात करें तो अहमदाबाद से साउथ वेस्ट अगर हम चलते हैं तो टुवार्ड्स मतलब एक बार राजकोट चलना पड़ता है, देन फिर रास्ते में हमने को मुड़ के भावनगर जब जाते हैं तो लगभग 109 किलोमीटर के बाद में धुलेरा स्मार्ट सिटी की जगह आती है। ये गल्फ ऑफ खंबात पे सिचुएटेड है और इसी में ही 60-65 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हमारा भावनगर आ जाता है। तो वी कैन से इट इज इन बिटवीन अहमदाबाद एंड भावनगर। आज की कनेक्टिविटी ये 109 किलोमीटर की है, लेकिन फ्यूचर की कनेक्टिविटी घट जाएगी। क्यों घटेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो 922 स्क्वायर किलोमीटर का ये साइज है, जो कि ऑलमोस्ट वी कैन से कि दिल्ली के साइज का ये पूरा सिटी बन रहा है। सो दिल्ली के साइज का कोस्टल रीजन पे एक पूरा नया शहर बन रहा है, विच इज अराउंड 109 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद एंड 60-65 किलोमीटर फ्रॉम भावनगर। राजकोट से डिस्टेंस बात करें 170 है और वडोदरा से 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये चीज बनी हुई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मैप की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अहमदाबाद के साउथ वेस्ट में, सो इस तरीके का ये मैप रहेगा जिसमें ये 33 विलेजेस की जमीन को पूरा एक्वायर करके और ये पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी आपका बनाया जा रहा है। अब ये इनमें यहाँ क्या क्या माइलस्टोन्स हैं वो सारे मैं आपको कमिंग स्लाइड्स में आपके साथ में शेयर करूंगा। अब कनेक्टिविटी की बात करें, सो जैसा वरुण भाई ने बताया था कि इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इसको दी जा रही है। तो ये एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर, मतलब आज से 3-4 महीने के बाद में ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जो 109 किलोमीटर की डिस्टेंस थी अहमदाबाद और इसके बीच में, वो घट के 70 किलोमीटर की डिस्टेंस बच जाएगी। और क्योंकि एक्सप्रेसवे है तो 1 घंटे का ही टाइम लगेगा उस पर। सो ये है। इसी एक्सप्रेसवे को आगे डीएमआईसी, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके साथ में जोड़ा जा रहा है। सो डीएमआईसी से वेल कनेक्टेड ये पूरा मतलब सिटी रहेगा। सेकेंडली, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट वहां पे बनने लग रहा है, जिसका रनवे का काम कंप्लीट हो चुका है। उसकी एयरपोर्ट की बाउंड्री लैंड फिलिंग का काम कंप्लीट हो गया, टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है। 2026 दिसंबर तक ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब आज से 2 साल के अंदर अंदर वो भी आपका फुल्ली ऑपरेशन हो जाएगा। तीसरा, जो एक्सप्रेसवे है बिल्कुल इसके बीचों बीच मेट्रो, आरआरटीएस मेट्रो है, उसकी जगह छोड़ी गई है, उसका प्रपोजल अप्रूव्ड है, तो उसका भी काम किसी भी टाइम पे शुरू हो सकता है। चौथा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे लाइन की जो मैं बात करूं जो गुड्स ट्रैक को लेके जाती है, उसको भी अहमदाबाद के पास में भीमनाथ जो उनका डीएफसी स्टेशन है वहां से कनेक्टिविटी करके धुलेरा को जोड़ा गया है। और एट प्रेजेंट भावनगर का सी पोर्ट इसका नियरेस्ट सी पोर्ट है, लेकिन फ्यूचर में जो भी इसका अपना बनेगा वो भी रहेगा। लेकिन भावनगर की भी बात करें तो 65 किलोमीटर अवे ही है। तो मतलब ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी इसकी सिटी की रहेंगी। नेक्स्ट बात करें गवर्नमेंट के रोल की, तो जैसा मैंने इनिशियली बताया था कि दिस इज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें 49% का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 51 का गुजरात सरकार का है। और जब ये सिटी फुल्ली डेवलप होगी तो इसमें लगभग 20 लाख जॉब्स रहेंगी और 1 करोड़ के आसपास इसमें आबादी रहेगी। दूसरा, अभी तक हमने सुना होगा जैसे SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लेकिन इस शहर में SIR एक्ट लगा है। SIR का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। और इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी इस पे मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। आप लोगों को याद होगा कि 2009-10 में टाटा नैनो का जो प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में लगा हुआ था और वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके साथ में वहां पे मिसहैपनिंग हुई और जो पूरे प्लांट को ही, एक एग्जिस्टिंग प्लांट को वहां से शिफ्ट करना पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने यही सोचा कि मतलब सरकारें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा सिटी और उसमें ऐसे एक्ट एंड ऐसे प्रोविजंस लेके आएंगे जहां पर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस की कोई गुंजाइश ना हो। मतलब एक बार जो इंडस्ट्रीज को मतलब सब्सिडीज प्रॉमिस कर दी, जो बेनिफिट्स प्रॉमिस कर दिए, वो इंटैक्ट रहें और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो हो जाए। तो इस तरीके से इस एक्ट को यहाँ पे लगाया गया। और ये एक्ट इतना पावरफुल है कि ये सिर्फ शंघाई में अभी तक का लगा हुआ है। तो शंघाई में आपको मालूम है कि वो प्रोडक्शन का मतलब वर्ल्ड वाइड हब है। तो उसी की तर्ज पे ही इस सिटी की भी ग्रोथ को मतलब हैम्पर ना हो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड XYZ रीजंस। तो इसको क्लीन पूरा का पूरा मतलब लाइसेंस रहे, इस पर्पज से इस एक्ट को यहाँ पे लगाया गया है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह है ये, धुलेरा में। तीसरा, जब इंडस्ट्रीज होती है तो उनको 3600 तरह की अप्रूवल्स की जरूरत होती है। तो उन अप्रूवल्स को एक ही सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिले, इस चीज के लिए वहां पे एक एडमिन बिल्डिंग है जो आप
पिक्चर पे देख भी रहे हो, जिसको ABCD का मतलब होता है एडमिन कम बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा। सो ABCD बिल्डिंग से इंडस्ट्रीज को विद इन 7 डे हर तरीके का अप्रूवल्स अपने को मिल जाता है। और इसी बिल्डिंग में ही पूरे सिटी का आपका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो है, क्योंकि सिटी में जितने भी कैमरा सिस्टम लगे हैं, CCTV लगे हैं, AI सिस्टम लगा है, SCADA सिस्टम लगा है, उनको सबको कंट्रोल एंड मैनेज यहीं से किया जाता है। और ये आपकी ऑलमोस्ट सिटी के बीचों बीच ये बिल्डिंग बनी हुई है। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जैसा मैंने इनिशियली बताया था, हेल्क्रो द सेम कंपनी जिसने पाम जुमेरह जैसी 70 डिजाइनिंग करी है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिविक इंफ्रा की प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब कितने एरिया में इम्प्लीमेंट किया, जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि 920 स्क्वायर किलोमीटर का ऑलमोस्ट साइज ऑफ दिल्ली का ये सिटी है, लेकिन उसमें से 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया जो कि सैंपल एरिया हम बोल सकते हैं, या उसको एक्टिवेशन एरिया भी बोलते हैं, तो उस सैंपल एरिया के अंदर स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे तैयार होने लग रहा है। तो उस सैंपल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपका कंप्लीटली इंडस्ट्रियल एरिया है। जो टाटा सेमीकंडक्टर की बात करें या आज जो भी इंडस्ट्रीज वहां पे आई हुई है, उसी सैंपल इंडस्ट्रियल एरिया में ही बनी हुई है। तो उस सैंपल इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं। उसके जो रोड्स रहेंगे पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में, या जो अभी सैंपल एरिया में बन चुके हैं, रोड्स के नीचे से ही डक्ट्स डल रखे हैं, जिसमें से बिजली, पानी, इंटरनेट, वेस्ट वाटर, स्टॉर्म वाटर, नॉर्मल वाटर, सब तरह की यूटिलिटीज आपकी रोड के नीचे से जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये एक डिग फ्री सिटी रहेगा और पूरे सिटी की रोड इसी तरीके से ही रहेगी। दूसरा, इस सिटी के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल मैन मेड रिवर ली गई है, जो आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वो भी काम करेगा और सिटी की ब्यूटिफिकेशन का लिए भी काम कर रहा है। क्योंकि जैसे आपने देख रहे हो कि ये रिवर फ्रंट्स बन रखे हैं और काफी सुंदर रिवर फ्रंट बने हैं, तो जैसे अहमदाबाद में आपने साबरमती पे भी देखे होंगे, तो उस तरीके के ब्यूटीफुल इसके रिवर फ्रंट्स बने हुए हैं। सो ये इंडस्ट्रियल एरिया से अभी निकल रही है। फिर रोड्स पे जो ये चौड़े डिवाइडर आप देख रहे हैं, इन पे फ्यूचर में मोनोरेल का प्रोविजन के लिए चौड़े रोड छोड़े हैं, मतलब चौड़े डिवाइडर छोड़े हैं। देन फिर 3 लेन का रोड आ गया, फिर शेडेड वॉकवे आ गया, एंड देन साइकिल ट्रैक आ गया। तो इसी तरीके पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में पूरी सिटी की है आपका। देन दिस इज ऑल्सो एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ अभी जो डेवलपमेंट हुई है सैंपल एरिया या एक्टिवेशन एरिया में वहां की। सो ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको दिखाई है। मैं एक्चुअल वीडियो भी दिखाऊंगा अभी तक कहाँ पे ग्रोथ हुई है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और पॉइंट्स को कवर करूंगा। उसके बाद में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क वहां पे लगने जा रहा है। तो ये 5000 मेगावाट का पूरा सोलर पार्क रहेगा। इसमें से 400 मेगावाट का ऑलरेडी लग चुका है, और जैसे जैसे सिटी की डिमांड आएगी वैसे वैसे इसको आगे फर्दर कमीशनिंग होती रहेगी। तो ये काफी बड़े एरिया में ऑलरेडी टाटा ने लगा रखा है यहाँ पे। देन अब प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एट प्रेजेंट, तो उसमें सबसे पहला नाम है रिन्यू पावर का। रिन्यू पावर ये जो सोलर पैनल्स हैं इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग ही करती है। तो इसने 100 एकड़ में वहां पे अपना प्लांट लगा रखा है। अभी ये पार्शियली ऑपरेशनल है, जिसकी वजह से लगभग 1000 के आसपास लोग वहां पे काम कर रहे हैं। ये लोग अभी भावनगर से या जो दूसरी पास में जगह है धंधुका, वहां से डेली अप डाउन कर रहे हैं। और जब ये फुल्ली ऑपरेशनल होगी ये फैक्ट्री, तो आपका लगभग 1000 लोग इसमें काम कर रहे होंगे। और इसके जो सामने वाली ये जो जमीन आप जो देख रहे हो, ये बेसिकली टाटा ने ली है, जो सेमीकंडक्टर का इंडिया का सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट फैब प्लांट वहां पे लगा रहे हैं। टाटा यहाँ पे इस प्लांट का भूमि पूजन 13 मार्च को ऑलरेडी करवा चुकी है प्रधानमंत्री जी से। और टाटा ने प्रॉमिस किया था कि विद इन 3 इयर्स भारत की सबसे पहली मेड इन इंडिया सेमिकॉन चिप आपको यहाँ से धुलेरा के इस प्लांट से मिलकर तैयार हो जाएगी, जिसके लिए टाटा ने 4000 इंजीनियर्स को ऑलरेडी हायर करके ताइवान ट्रेनिंग के लिए भेजा गया हुआ है। यहाँ पे साइट कंस्ट्रक्शन का काम फुल स्विंग से लगा हुआ है, और 2027 तक टाटा और टाटा की जो 120 एंसिलरी कंपनीज रहेंगी उनके थ्रू लगभग 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। तीसरा, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट 2026 दिसंबर तक नाम बन के तैयार हो रहा है। तो एयरपोर्ट क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एविएशन के लोगों को ही रोजगार दे रहा है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को मिला के अगर हम बात करें तो लगभग 25-30 हजार लोगों को रोजगार देगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आपकी होटल इंडस्ट्री आ गई, एरो सिटी आ गए, कार्गो ऑपरेशंस आ गए, F&B बिजनेस आ गए,
उस तरीके के सभी चीजों को मिला के अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर लगभग 25-30 हजार लोगों को ये भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। देन इसमें एयरबस मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। इसमें बोइंग का एमआरओ प्लांट भी सेटअप हो रहा है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सियाटल के बाद इकलौता एमआरओ प्लांट होगा बोइंग का जो कहीं लग रहा है, तो वो धुलेरा में लग रहा है। हाँ, तो विच इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ धुलेरा। थैंक यू वरुण। सो एज वरुण सेड, बोइंग और एयरबस दोनों ने अपना जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन सेंटर है वो भी धुलेरा में किया है। एंड अदर देन दिस एक एविएशन जोन रहेगा जहाँ पे फ्लाइट ट्रेनिंग, एविएशन एकेडमी, ये सारा का सारा वहाँ पे रहेगा। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मतलब इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। इस साल जब गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था जनवरी में, तो टाटा और एयरबस ने अनाउंस किया था कि जो डिफेंस का C-295 एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी धुलेरा और बड़ौदा 2 जगह करेंगे। तो धुलेरा में ये भी अपना एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा। इस तरीके से ये वो कंपनीज हैं जो धुलेरा में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं। तो सारे बड़े नाम आप इसमें टाटा देख रहे हैं, महिंद्रा देख रहे हैं, रिलायंस देख रहे हैं, डसॉल्ट देख रहे हैं, अदानी देख रहे हैं, बिरला देख रहे हैं, एयरबस, बोइंग, राफेल, ये सारी की सारी कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं। इनमें से कुछ वहाँ पे अपना प्लांट सेटअप कर चुकी हैं, कुछ कर रही है और कुछ करेंगी। तो होगा क्या कि इनकी वजह से अगले 3 से 5 साल के अंदर लगभग 1.5 लाख लोग वहां पे माइग्रेट होंगे और काम कर रहे होंगे। और अब एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन क्रिएट होगी जो आज से 30 इयर्स बैक गुड़गांव में हुई थी कि मारुति के आने से लाखों लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए थे और रहने लगे थे। तो जिस तरीके से डीएलएफ ने, अंसल्स ने उस टाइम पे सोच लगाई थी कि हम इनके रेजिडेंशियल का इंतजाम करते हैं, उसी तरीके से अब अहमदाबाद के डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज को सोचा कि क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी ग्रो हो रहा है और इसमें ओवरऑल तो 20 लाख जॉब्स रहेंगी, 1 करोड़ लोग रहेंगे, लेकिन अभी भी 3 से 5 साल की भी बात करें तो लगभग 1.5 लाख लोग हैं जो वहां पे रहने के लिए जा रहे होंगे। तो उनके लिए फिर वहां पे अब प्लॉटिंग सिस्टम वहां के डेवलपर्स हैं उन्होंने करना शुरू किया है। अब यहां से मतलब दिल्ली एनसीआर से एनुअली लगभग 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धुलेरा के रेजिडेंशियल प्लॉटिंग में कर रहे हैं लोग। उसके 2 सिंपल रीजन हैं। एक तो हमने दिल्ली एनसीआर जिसमें गुड़गांव आ गया, नोएडा आ गया, यहाँ की जो रियल स्टेट ग्रोथ है उसको लास्ट 30 ईयर, 40 ईयर्स, 20 ईयर्स से ऑब्जर्व किया है, जहाँ पे वरुण ने जैसा बताया 200-300 रुपए की चीज आज 4 लाख रुपए पे ट्रेड कर रही है, उस तरीके की ग्रोथ देखी है। एंड दूसरा जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल अहमदाबाद से ही बनता है। जो अहमदाबाद के पास में सानंद एक छोटा सा गांव होता था जिसमें टाटा नैनो का प्लांट रखा था जब वेस्ट बंगाल से डिस्टर्ब हुआ था। तो सानंद में जब ये प्लांट आया 2010 में, उस टाइम में और 2020 में मतलब 10 साल में प्राइस एप्रिसिएशन हुआ था प्रॉपर्टी का, वो 20 टाइम्स हुआ था। क्यों? क्योंकि जब टाटा वहां पे आया था तो वो एक सिंपल गांव होता था, आज वो एक इंडस्ट्रियल टाउन बन चुका है। अब मेरा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर सानंद जैसी जगह जो ना तो स्मार्ट सिटी है, ना एसआईआर एक्ट जैसा उसमें पावरफुल कानून है, ना उसका एयरपोर्ट है, ना सी पोर्ट है, ना रेलवे का वो कुछ है, अगर ना इसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर ऐसी जगह 10 साल में 20 गुने का अप्रिसिएशन दे सकते हैं तो धुलेरा इससे कहीं ज्यादा देगा। लेकिन फिर भी ऑन ए कंजर्वेटिव साइड आई वुड से अगले 10 साल में 10 गुना तो वो एप्रिसिएशन फॉर श्योर देगा। या 5 साल की भी बात करूं तो 4 गुना के आसपास तो ये एप्रिसिएशन पक्का देगा। कहने का मतलब यह है कि आज जो हम 15 लाख रुपए की इन्वेस्ट अपनी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो अगले 10 साल में 1.5 करोड़ रुपए का होना तय है, या अगले 5 साल में 60 लाख का होना तय है, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ मतलब लाइव एग्जांपल ऑफ गुड़गांव, सानंद जो हम देख रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट धुलेरा। अब मैं आपके साथ में अगले 2-3 स्लाइड्स पे बात करूंगा अबाउट द डेवलपर, अबाउट द प्रोजेक्ट। सो जिस डेवलपर के साथ में हम काम कर रहे हैं उस डेवलपर का नाम है, योगेश सर, मैं इसमें एक चीज प्लीज प्लीज। मैं एक चीज में ऐड ऑन करना चाहूंगा। आज यहाँ सारे सीनियर्स या जूनियर्स, तो फ्रेंड्स एंड सीनियर्स हैं सारे और जूनियर्स हैं। तो मेरी प्रतीक सर से बात हो रही थी, तो हमने एक थॉट लिया कि कुछ ऐसा करते हैं, बीइंग इनटू अ मरीन फेडरेशन, हम यहाँ पर एक हमने यहाँ का जो बड़ा जिसके बारे में बात करने वाले हैं सर, उनसे बात करके हमने एक मरीनर्स के लिए, एक मरीन फेडरिटी के लिए हमने एक स्पेशल प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा है,
जिसका नाम हमने मरीना बे करके हमने डिसाइड किया है विद द डेवलपर कि इसको फॉर द स्पेसिफिकली फॉर मरीनर्स हम इसको प्रमोट करेंगे। थैंक यू वरुण भाई। सो हम जिस एक रेप्यूटेड डेवलपर वहाँ के अहमदाबाद के हैं, RSC ग्रुप, सो इनके साथ में काम कर रहे हैं। RSC ग्रुप की प्रेजेंस अहमदाबाद में 2010 से है। पहले ये सिर्फ बल्क लैंड में डील करते थे, जैसे इनकी कंपनी है ये RSC एंटरप्राइज, ये आज भी बल्क लैंड में डील करती है। किसी को 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ इकट्ठा अगर लैंड पार्सल चाहिए तो ये कंपनी दिलवाती है। आपने शायद नाम सुना होगा, एक सोनू शर्मा जी एक इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे काफी उनके वीडियोज होते हैं मोटिवेशनल, उनको भी 5 एकड़ जमीन इन्होंने अभी दी है। दूसरा है इनकी कंपनी RSC बिल्डकॉन, जो रोड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तीसरी है इनकी RSC सिक्योरिटी, जो आपका धोलेरा में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी जो स्टाफ है, सिक्योरिटी पर्सनल है, वो यही मतलब आपको देती है। फोर्थ आपका है धोलेरा ट्रायंगल इंफ्रा एंड RSC रियलिटी, ये रेजिडेंशियल प्लॉटिंग स्कीम्स आपके डेवलप करती हैं। अगर इनके फाउंडर की मैं बात करूं, सो ही इज ए एक्स आर्मी पर्सन, मिस्टर रामराज सिंह, जेम ऑफ द पर्सन है ये पूरे के पूरे। 16 साल आर्मी में सर्व करने के बाद में, और अब ये इस ग्रुप को प्रमोट कर रहे हैं। और इनके पास में एक अच्छी बात यह है कि ये धुलेरा के ही लोकल बोर्न एंड ब्रॉट अप है। सो धुलेरा की हर ज्योग्राफी से ये अच्छे से वाकिफ है। इन एडिशन टू दैट, मतलब ही हैज मतलब बिग लैंड बैंक इन धुलेरा, लगभग 300 एकड़ के आसपास इनके पास में डिफरेंट डिफरेंट पैचेज में लैंड बैंक है, तो इनके पास में जमीन भी काफी है। तो इनके साथ में हम काम कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा धुलेरा का जो मैप है इसके ऊपर मैं आपको दूं। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि अपने नॉर्थ में अहमदाबाद है, साउथ में आपका ये भावनगर है। सो ये वो एक्सप्रेसवे है जो फ्यूचर में आज से 3-4 महीने बाद में फुल्ली कनेक्टेड रहेगा अहमदाबाद ले जाने के लिए। अब इसमें ये जो साइट है, ये आपकी एयरपोर्ट की साइट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट है। और ये जो साइट है जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, ये टाटा के सेमीकंडक्टर का प्लांट है। ये जो साइट है ये एडमिन बिल्डिंग है, जो ABCD वो है। और इस एडमिन बिल्डिंग के साइड से ये जो रास्ता जा रहा है, ये अभी एट प्रेजेंट अहमदाबाद पहुंचने का रास्ता है। ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रेट नहीं है जैसे दिखाया है, बट ये एट प्रेजेंट की कनेक्टिविटी ये है। सो इस पे हमारे प्रोजेक्ट्स, जैसे डेवलपर के कुछ प्रोजेक्ट्स है, प्राइड है जो कि कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गया, 40 एकड़ के अंदर ये था। उसके बाद में पैराडाइज है विच इज ऑलमोस्ट क्लोज। देन आपका मेपल है। फिर आपका ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, इसका मरीना बे, ये हम नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। एक ऐसे ही एयरफोर्स पर्सनल्स के लिए हमने एयरपोर्ट एनक्लेव भी निकाला था, और ये हम मरीनर्स के लिए स्पेशली मरीना बे निकाल के लेके आ रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट। अब जो हम प्रोजेक्ट में देते हैं एक फैसिलिटीज, वो क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट की बाउंड्री करते हैं सबसे पहले। तो जैसे 40 एकड़ का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें सबसे पहले बाउंड्री करो। बाउंड्री करने के बाद में उसमें लैंड फिलिंग करना, इंटरनल रोड्स बनाना, क्लब हाउस बनाना, पार्टी लॉन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, प्लॉट्स के डिमार्केशन, सिक्योरिटी, किड्स प्ले एरिया, स्पोर्ट जोन, इस तरीके की एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। सो ये एक गेटेड कंपाउंड के अंदर प्लॉट्स है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स है, जो वेल वेल डिमार्केशन के साथ में है। सो इसमें किसी तरीके का कोई ट्रेसपासिंग, कोई एनक्रोचमेंट होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। विद ऑल बेसिक एमिनिटीज अपने पास में, रेडी टू कंस्ट्रक्शन ये प्लॉट्स होते हैं। अब मरीना बे की मैं बात करूं तो ये एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट है, उससे 11 किलोमीटर की दूरी पे है। ABCD बिल्डिंग जो एडमिन बिल्डिंग है, उससे लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे है। एक्सप्रेसवे से डिस्टेंस पड़ेगी इसकी 5 किलोमीटर। सॉफ्टवेयर और IT जोन से ये 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। एंड इंडस्ट्रियल एरिया से ये 2 किलोमीटर दूरी पे, और 50 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। अब मैं आपको धोलेरा का थोड़ा सा एक 2 मिनट का वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो मैं वो 2 मिनट का वीडियो और आपके साथ में शेयर एक बार करने जा रहा हूँ। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये अहमदाबाद का सरदार पटेल रिंग रोड है, अहमदाबाद का रिंग रोड है। और ये जो जगह है जहाँ पे गोल चक्कर बना हुआ है, ये अहमदाबाद की सरखेज जगह है। तो सरखेज से ये एक्सप्रेसवे शुरू हो रखा है। दिस इज क्वाइट ओल्ड वीडियो, अभी काफी एडवांस इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है। सो आप ये जैसे मीडियम में गैप देख रहे हैं ना, ये पूरा गैप एग्जैक्टली इतना ही रहता है, क्योंकि फ्यूचर में इसी में ही मेट्रो आपका रेल निकलेगी।
सो इस एक्सप्रेसवे की आपको दिखा रहा हूँ कुछ वीडियोस, देन आगे सिटी पे लेके जा रहा हूँ। ये धोलेरा एयरपोर्ट जाने का रास्ता है। ऑब्वियसली फ्यूचर में इसको भी वाइडनिंग होगी, ऐसा नहीं कि मतलब इतना ही रास्ता रहेगा, बट ये एयरपोर्ट की तरफ अभी एट प्रेजेंट की कनेक्टिविटी है। ये जो सैंपल एरिया या एक्टिवेशन एरिया है उसके अंदर की रोड्स है। तो इस पे आप देख रहे हैं बीच में अच्छा चौड़ा डिवाइडर है जिसमें फ्यूचर में मोनोरेल का प्रोविजन रखा गया है। देन 3 लेन की रोड इधर, 3 लेन की इधर है। देन शेडेड वॉकवे है, देन साइकिल ट्रैक है। तो इसी तरीके से रोड पूरे ही धुलेरा में रहेगी। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। नर्मदा का पानी यहाँ पे आता है, उसी पानी को ही ट्रीट करके पोर्टेबल वाटर बनाया जाता है। ये अगेन सैंपल एरिया, एक्टिवेशन एरिया के अंदर के रोड्स एंड वो है। ये रेन्यू का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका वो है। ये पुराना वीडियो है, इसमें 2 ही शेड आपको दिख रहे हैं, अभी वहां पे 3 शेड बन चुके हैं इस तरीके के। और ये जो आप खाली जमीन देख रहे हैं, ये बेसिकली जैसे मैंने बताया पुराना वीडियो है। अभी यहाँ पे काफी कुछ स्ट्रक्चर तैयार होना शुरू हो गया है जो L&T टाटा सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए लगा रही है, इसके रेन्यू के जस्ट अपोजिट। ये 800 एकड़ की जमीन है लगभग। ये जो मैन मेड रिवर की मैं बात कर रहा था आपको, वो है जिसमें अच्छे ब्यूटीफुल आपका ये बने हुए हैं रिवर साइड। और ये एडमिन बिल्डिंग है जो मैं आपको बात कर रहा था, जहाँ पे हर तरीके के लाइसेंस अप्रूवल्स यहीं से मिलते हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर है। और ये जो साइड से रोड जा रही है, ये एट प्रेजेंट की कनेक्टिविटी है अहमदाबाद पहुंचने की। ये जो है हमारी एक साइट है जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई है, तो प्राइड के नाम से है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके की बाउंड्री हमने कर रखे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। और मैं आपको इसका 1 मिनट का टूर करवाता हूँ। ये सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। और ये जो राइट साइड में आप लगभग 1000 गज का खाली प्लॉट देख रहे हो, ये क्लब हाउस के लिए रखा गया है। तो इसमें क्लब हाउस अभी बनना बाकी है। इस तरीके की अभी कंक्रीट की रोड है। दिवाली तक तो बारिश हो रही थी, अभी ये बारिश जैसे कंप्लीट हो गई है तो अब यहाँ पे ब्लैक टॉप का भी काम शुरू हो जाएगा, रोड के ब्लैक टॉप का। सो इस तरीके से ये इसका लेआउट था। सो सिमिलर वे में हम सारे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं जिनका प्रॉपर प्लॉट की बाउंड्री होके, डिमार्केशन होके, इंटरनल रोड्स के साथ में ये सारा हम करके देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट धोलेरा। अभी आप लोगों के कुछ इसमें सवाल हों, जो क्वेरीज हों, यू कैन आस्क मी। मेरे भी कुछ सवाल हैं अभी। ऐसे फॉर एग्जांपल जो मरीना बे की बात कर रहा है ये, तो इज मरीना बे रेसिडेंशियल और कमर्शियल? मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट में, फिर से इसका मरीना का वही शेयर कर देता हूँ ब्रोशरी में आपके साथ में। सो ये सॉफ्ट कॉपी है मरीना की, और इसमें आपके लेआउट की मैं बात करूं, सो ये एंट्री है इसकी।
सो इसमें एंट्री में ये जो 9 प्लॉट्स हैं ये तो कमर्शियल पर्पस के हैं, और उसके बाद में ये जो आपका 167 प्लॉट्स हैं अभी, फ्यूचर में इसमें एक्सपेंशन भी रखा है, तो ये आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अच्छा। सर इसमें एक स्पेशल चीज है कि यहाँ पर जो सबसे छोटी रोड है वो ऑलमोस्ट आपकी 26 फीट की है, और सबसे बड़ी ऑलमोस्ट आपकी बैठती है 45 फीट की। तो नॉर्मली दुलेरा में किसी भी प्रोजेक्ट में 6 मीटर से ऊपर की रोड्स नहीं है। तो यहाँ पर डिजाइनिंग जो करी गई है वो फ्यूचरिस्टिक करी गई है, और मरीनर्स को सबको ध्यान में रखते हुए कि कनेक्टिविटी एंड द लेआउट हमने इस तरीके का डिजाइन करा है। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी दे कैन आस्क मी तो और मैं अभी मुकेश सर। अचल गुप्ता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है होस्ट से कि आप अनम्यूट कर दीजिए सबको। परमिशन दे रहा हूँ मैं सबको कि हाँ, अपना तुरंत। तो अचल गुप्ता जी, यू रेज योर हैंड, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। Hi everyone. First of all, thank you. Wonderful presentation. So Varun ji contacted me. There was a event, and I just got to know today about him first. And I have few questions. जैसे आपने Marina, we went through the entire presentation. We got to know the potential of the city and everything. Looks very promising. मुझे जो चीज पूछनी है आपसे वो दो तीन चीजें ये हैं कि of course it's going to be a very long term investment, and Right. we as mariners are also looking something for same. जब आप fraternity की बात कर रहे हो ना, that you are proposing a mariners fraternity development, which is a fantastic idea by the way. लेकिन इसमें what specific you are planning, which would be, you know, which would be individualistic to this particular Marina Bay, and not something which is, क्योंकि it's not a riverfront thing, it's not on the seaside, but rather than just being a simple plotting with just the name Marina Bay, is there anything else which features the fraternity into the development या facade या फिर I don't know, in the form of a club or anything? यस सर, इसका आंसर मैं दूंगा। सो इसमें जो एंट्री गेट है और जो क्लब हाउस है वो मरीन इंडस्ट्री में को थॉट में लेके डिजाइन हो रहा है। तो क्लब की रेंडरिंग्स अभी इन प्रोसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हम लोगों ने सब चीज डिजाइनिंग करी। तो डिजाइन्स क्लब के अभी अंडर अंडर डेवलपमेंट है, और उसमें जैसे क्लब हाउस हो गए, जैसे आज हमारे शिप्स के ऊपर कोई मीटिंग रूम्स होते हैं, तो उस तरीके से मीटिंग रूम्स होंगे। वेरियस पॉइंट्स पे शिपिंग फेडरेटी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन कर रहे हैं पूरा का पूरा क्लब। We might design a small ship structure on the club itself. तो ये भी हमारा एक उसमें हमारा एक प्रपोजल था कि पूरा लुक एंड फील जो आए वो क्लब का एक इस तरीके से हो, when you are out at sea, so you are at sea, but when you are not at sea, so at least you can get a feeling for sea. तो thought No, वो we है। are not dying for that feeling. तो We very much like being at home just so for the sake of it. इसमें एक चीज और हमने But रखा yeah. है। so this is not a small project, हमारा इसका विजन बहुत बड़ा है। अभी हमने एक Okay. छोटा सा पैच ओपन किया है, और पैच को अगर हमारा कुछ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हमने इसके पीछे और डेवलपर से बात करके 60 एकर्स डेडिकेट कर दिया है कि धीरे धीरे इसको सिर्फ मरीन फेडरेटी की पूरी एक टाउनशिप बना दे। Okay. All right. तो बहुत एडवांस स्टेजेस पे हमने वर्क करा है डेवलपर के साथ। इसमें हमें टाइम कम मिला, बट हमने मीटिंग्स बहुत करी हैं ओनर के अच्छा। साथ। आरएससी ग्रुप जो खुद आर्मी बैकग्राउंड से हैं, वो भी उन्होंने बड़ा इस चीज को अप्रिशिएट किया, बिकॉज सिंस ही इज फ्रॉम आर्मी, सो वो समझते हैं कि ये जो हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, ये मरीन इंडस्ट्री हो गई या एयरफोर्स इंडस्ट्री हो गई या आर्मी वर्ल्ड हो गया, ये एक इमोशन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जो Okay. हमारे कलीग्स हैं वही हमारी फैमिली है। Yes, yes, absolutely. तो बहुत चीजें थॉट देके हमने इसको डिजाइन किया है, और इन टाइम टू कम यू विल गेट द वीडियोस एंड द रेंडरिंग्स फॉर द प्रोजेक्ट हाउ वी आर डिजाइनिंग इट। Okay. A couple of more quick questions. One thing is, since the name suggests Marina Bay and it's exclusively for mariners, so does it mean that people who are non-mariners, they will not be able to invest into it if you are giving references? Or the first priority No, sir, not goes in to this the project. mariners? No, Not in this not project. in this project. Not in So the it will remain for exclusive to first. mariners and the fraternity Yes, will be maintained. All right, yes. understood. So Second first question is, preference
फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मरीनस के लिए ही है। आफ्टर सेलिंग अगर आप रीसेलिंग में जाते हैं तो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमने Okay. मरीनस को ही दी है। ठीक है, got जैसे it. आज Secondly, आप गुड़गांव से हो सर, जैसे यहाँ जलवायु विहार है, सो Yeah. उस रेल विहार है, तो रेलवे वाले ही लोग रहते हैं। अब आगे किसी को कोई रीसेलिंग करते हैं, रीसेलिंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है। So how much is that cool off period? जिसके and I understand it's a freehold. It's going to be a freehold property, or is it going to be a leasehold? 100% फ्री होल्ड। Freehold from the beginning. And is there any cool off period जब जो आपका जो target handover होता है उसके बाद में up to what amount of time you are not allowed to sell it off further if people are looking purely for investment purposes? नो सर, एनी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। There is इसमें nothing सर of ना that तो sort. सेलिंग की कोई बाउंडेशन है और ना ही इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई ऑब्लिगेशन है। ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 साल या 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसी भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। Okay. तो इस प्रोजेक्ट But के अंदर हमने ये भी अप्रूवल लिया है कि अगर किसी को 10 साल नहीं करनी हो तो वो ना करे, कंस्ट्रक्शन एज एन इन्वेस्टमेंट भी छोड़ सकता है। but अगर कंस्ट्रक्शन क्योंकि नहीं इसमें होगा and let's say out of थॉट इसमें let's say about थॉट 70% plots remain undeveloped, sorry, let's say around 70 or 80% plots remain undeveloped, and the remaining 20%, even if they would wish to, you know, construct something of their own and move into this place, they will not be having a sustainable environment to thrive. तो नहीं उस सर, चीज को आपने एनवायरनमेंट कंसीडर किया है? डे वन से इसमें यस, ये इस पॉइंट पे भी डेके डिस्कशन हुआ था। सिंस जी। यहाँ पर गल्फ ऑफ कंबाट डेवलप हो रहा है तो वहां पर भी मरीन फेडरेलिटी के लोग रहेंगे, और बहुत बड़ा विजन है यहाँ पर गवर्नमेंट का गल्फ ऑफ कंबाट को क्रिएट करने का। तो Okay. हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहीं के लोग जो गल्फ ऑफ कंबाट में काम कर रहे होंगे वही आके रहेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट उनको हम वैसा ही डे वन से दे देंगे। इसलिए इसमें अच्छा। डेवलपर डे वन से आपसे आने वाले 5 साल की मेंटेनेंस भी चार्ज कर रहा है। दैट इज वेरी नॉमिनल, 100 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। All right. आने वाले 5 साल का डेवलपमेंट कॉस्ट भी ले रहा है। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट डेवलप तो हम बना दें और वो डेवलप ना हो, तो उसकी मेंटेनेंस आज से वो 5 साल की एडवांस में ले रहा है, ताकि वो एरिया को डेवलप कर सके, डेवलप्ड रह पाए आने वाले 5 साल। और 5 साल बाद फिर Okay. जो भी एक कॉस्ट होगी उस पर फिर बात करी जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट की। All right. Okay. ठीक है. And I actually I did not get time much to you know, do some research, but he said the closest port is Bhavnagar, which is up and running. But Dholera also is it's not landlocked, right? Or is it? Dholera as such, the city Dholera itself. आई बेग योर पार्टनर इस- सर, थोड़ा सा जहाँ क्वेश्चन पे सारा आपका। डेवलपमेंट आ रहा है, जहाँ पे सारा डेवलपमेंट आ रहा है, this entire development, is this a landlocked land parcel or is it connected by the sea, which नहीं could be कनेक्टेड, developed in the future? नहीं, यहाँ पर गल्फ ऑफ कंबाट है, जो टाटा का सोलर प्लांट लग रहा है विच इज वेरी नियर बाय टू सी, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन Okay. अलाउड नहीं है। तो All right, सोलर okay. प्लांट वहां लग रहा है, और जितना कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट आपका फॉर मरीन पोर्ट के लिए डेवलप हो रहा है। उसी कोस्टल बेल्ट का एक पार्ट है जहां पर टाटा को जमीन दी गई है, जहां पर वो अपना 5000 मेगावाट का प्लांट लगा रहा है। तो वहां पर नो कंस्ट्रक्शन जोन है वो। Okay. Understood. And just last question, क्योंकि गल्फ ऑफ खंबत की बात हो रही थी और कि सी पोर्ट को भी डेवलप करेंगे, and since you guys must have dived into this, is there any other proposed development from Inland Waterways Authority to get some stretch of a river from Gulf of Khambat all the way inside से, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी पूरी ग्राउंड से प्लान हो रही है? इसमें सर, इसमें जो जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे हैग्रो को लेके आया है फॉर द लैंड डेवलपमेंट, इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी थर्ड पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर करके इसको पूरा डिजाइन कर रही है, पूरा हाईटेक बना रही है डे वन से। जैसे आज कंटेनर टर्मिनल्स पे एक प्रॉब्लम आती है, कंटेनर टर्मिनल्स वहीं होते हैं जहां पर क्रेन्स होती हैं, तो वो क्रेन्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो केमिकल पोर्ट भी बना रहे हैं, वो ड्राई पोर्ट भी बना रहे हैं। ऐसा कोई शिप नहीं होगा जो यहाँ पर आके डॉक होके अपना लोडिंग अनलोडिंग ना कर पाए, क्योंकि दे हैव अ वेरी वास्ट सी लाइन। सो इनका ये इकलौता शहर है पूरे इंडिया का जिसकी मास्टर प्लानिंग पहले हुई है और डेवलपमेंट बाद में स्टार्ट हुई है। नॉर्मली होता क्या है, डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हो जाती है, मास्टर प्लानिंग बाद में आती है।
तो यहाँ पर हर चीज ईयर मार्क्ड है, ठीक है। कहाँ पर इंडस्ट्रियल आना है, कहाँ पर रेसिडेंशियल आना है, कहाँ पर ग्रीन जोन्स हैं, कहाँ पर आईटी हब बनेगा। तो एंटायर थिंग इज डिजाइंड फ्रॉम डे वन। तो दुलेरा जो हुआ था, जो दुलेरा का जो बर्थ हुआ था 2008 में हुआ था। दुलेरा में काम होना 2022 में स्टार्ट हुआ है। 16 साल का रिसर्च वर्क है। ऑलराइट, ठीक है, ग्रेट, थैंक्स। Hello everyone. Hi, sir. I am 2008 pass out, Rahul Mishra. I actually reside in Gujarat. I am working for Gujarat Maritime Board. आपकी वॉइस सर म्यूट हो गई है शायद। वॉइस नहीं आ रही सर। आ रही है अभी आपको? हाँ भाई, मैं हाँ, audible? अब आ रही है। यस। तो मैं 2008 पास आउट हूँ DMT से। अपने मैं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, which is the regulator for the whole Gujarat port. And my first posting was at Bhavnagar. So this project is Dholera is being sold in 2000. It was being sold in 2016 also by the many developers are there in Ahmedabad which are selling this project. 2016 से आज 2024 हो गया है। मैं हमारे जो चेयरमैन थे वो इसके MD भी थे, धोलेरा डेवलपमेंट स्कीम। मैं इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल व्यूज देना चाहूंगा इसमें। आप लोगों ने पॉजिटिव व्यूज दिए, बट ऑडियंस और अपने जो ऑडियंस है उसके लिए थोड़े से क्रिटिकल व्यूज दूंगा। देखिए, इसमें विजन क्या है कि मोदी जी का ये है कि इन्होंने पूरे गुजरात में ग्रास रूट लेवल पे काम, राइट। तो उनका क्या है कि वो हर जगह गए हैं, उन्होंने पोटेंशियल देखे कि कहाँ पे क्या डेवलप हो सकता है। जैसे आप अगर कच्छ में जाओ रीजन में, तो कच्छ में पहले कुछ नहीं था। Yes, sir. अब आज की डेट में ये हो गया कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने एक वाइट रन को देखा, उन्होंने एक विजन लिया कि इसको कैसे डेवलप करना है, और वो आज की डेट में डेवलप्ड है। वहाँ पे सोलर पार्क्स वैसे यहाँ पे आ रहे हैं, वैसे अडानी ने, रिलायंस ने उधर पे भी इन्वेस्ट किया है। फिर दूसरा रीजन एक चले जाओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला, वो जो रीजन है वो भी मतलब नर्मदा डैम का काम चल रहा था वहाँ पे, सरदार सरोवर डैम का, पर कोई मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल वो था। फिर उन्होंने ये डिराइव कि यहाँ पे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाएंगे, और आज की डेट में वहाँ पे लैंड तो ज़्यादा ही है, इवन टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा है। वैसा ही विजन मोदी जी का है गिफ्ट सिटी के लिए, जो अहमदाबाद और गुजरात के बीच में आता है, जो ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है ऑलरेडी। और वैसा ही विजन है मोदी जी का कि ये धोलेरा रीजन जो है ये पूरा एरिड रीजन है, बंजर जमीन है पूरा धोलेरा, वहाँ पे Yes. खेती है नहीं, हो नहीं रही। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो इसको एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में डेवलप कर सकते हैं अपने। बट मैं आपको बताऊं कि मैं जब ज्वाइन किया तो मैंने लोगों से पूछा, गुजरातियों से, लोकल गुजरातियों से, कि वर्थ इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने कहा कि अभी देखिए आप 20 साल 25 साल क्या होगा कुछ पता नहीं, अभी थोड़ा मूवमेंट पिकअप किया है, लेकिन मैं 2016 की बात बता रहा हूँ आपको। 2016 में ऐसी कंडीशन थी। डेफिनेटली विजन है गवर्नमेंट का तो कुछ ना कुछ होगा, बट गवर्नमेंट इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा एक लिमिट कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती। आप गिफ्ट सिटी को देख लो, आप इसका एरिया आपका है 942 स्क्वायर किलोमीटर, आप बता रहे हो, गिफ्ट का एरिया है ओनली 4 स्क्वायर किलोमीटर। उसको डेवलप करने के लिए 2010-11 से चल रहा था, बीच में IFL का डिफॉल्ट आया। मोदी जी खुद जब सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंचे तब जाके उसको प्रोजेक्ट पिकअप होना शुरू हुआ। उसके बाद भी 2021 तक, जो प्रतीक बता रहे हो कि आप लोगों भाई ने इन्वेस्ट किया है, 21 तक एक बहुत अच्छा पीरियड था इन्वेस्ट करने का, पिकअप नहीं हुआ था। वहाँ एक शोभा करके डेवलपर है जो एक बिल्डिंग बना रहा है, उसका प्रोजेक्ट वो 60-70 लाख में बेच रहा था उतने टाइम 2 BHK। आज वो चीज़ 1.5 करोड़ की है। रेट कहाँ से बढ़े? रेट वहाँ पे इसलिए बढ़े कि लोगों गवर्नमेंट ने पहले तो वहाँ पे जो भी ओनर है उसको रहना अलाउड नहीं था, वो अलाउ किया फर्स्ट 5000 ओनर्स को। फिर अभी रिसेंटली वहाँ पे लिकर अलाउड कर दिया। फिर ये बिल्डर्स ने वहाँ पे रश किया, बिल्डर्स जब रश किए तो उसके बाद से लैंड पार्सल कॉस्टली हो गया, और वहाँ पे जो चीज 60 लाख की थी वो 1.5 करोड़ की हो गई आज गिफ्ट सिटी के अंदर में। गिफ्ट सिटी का लिमिटेड लैंड पार्सल है, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने सालों साल कंपनियों को फोर्स किया कि टाटा का एक बाहर में ऑफिस था, टाटा TCS का, उसको बोला अंदर आप जाओ काम करो। बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी PSU बैंक है सबको बोला, SBI को बोला बिल्डिंग बनाओ,
गवर्नमेंट ने पुश किया, बट एक्चुअल जो डेवलपमेंट आता है दुबई टाइप का, कि जहाँ पे लोग अपने आप ही भाग के आ रहे हैं, वो आने में टाइम लगेगा। तो 4 स्क्वायर किलोमीटर को डेवलप करने में अभी भी गिफ्ट सिटी कंडीशन है कि अभी डेवलपमेंट काफी तेजी से है, बट उसको भी आते आते करीब 5-6 साल और लग जाएंगे सारे टावर्स वगैरह बनने में और उसको आगे ले जाने में। अब जब 4 स्क्वायर किलोमीटर में इतना टाइम लग रहा है, तो आप सोचो धुलेरा को कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राइट। दूसरी चीज है कि इसमें जस्ट लेट मी कंप्लीट इन 2 मिनट्स। यस उसके बाद जो है कि दूसरी चीज मेरे को एक जाननी भी है चीज, एक्चुअली मैंने ये अपडेट लेने के लिए भी ज्वाइन किया सेमिनार कि ये अभी क्या स्टेटस है। जो आप जैसे जब अहमदाबाद के डेवलपर्स हैं, ये मैं के साथ गया भी हूँ, ये लोग अहमदाबाद से बस लेके जाते हैं, आपको लेके भी जाएंगे, लंच कराएंगे वहाँ पे, प्रोजेक्ट समझाएंगे और उसके बाद वापस लेके आएंगे। एट द सेम टाइम वहाँ पे काफी न्यूज ऐसी चलती है यहाँ पे कि एक एक लैंड 2-2 लोगों को बेची गई, 4-4 लोगों को बेची गई। ये स्कैम्स चल रहे हैं धुलेरा में। दूसरी यस बात सर ये जो है कि ये धुलेरा जो है, आप गुड़गांव से कंपेयर करने जाओ तो आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड कंपैरिजन, बिकॉज गुड़गांव जो है एक है वो सराउंडेड बाई 3-4 स्टेट्स है, एनसीआर रीजन में है पड़ता है वो। वहां पे हर जगह से लोग आ रहे हैं। धुलेरा के आगे डेड एंड है, आगे उसके पास भावनगर आ जाता है, भावनगर के बाकी सी है। और जो सी डेवलप प्रोजेक्ट पोर्ट डेवलपमेंट का है, तो मैं खुद ही मैरीटाइम बोर्ड में हूँ। हमारे यहाँ से पोर्ट लेड सिटी डेवलपमेंट के इनिशिएटिव चालू हुए हैं, उसमें भी उस साइड पे कोई पोर्ट नहीं है। वहाँ पे ड्राफ्ट की रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको। जो भावनगर पोर्ट चल रहा है वो सिर्फ केवल टाइडल वेरिएशन पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ 8 से 10 मीटर की टाइड मिल जाती है हमको। उस बेसिस पे पोर्ट चल रहा है, वो भी लाइटरेज पोर्ट है, आपको डायरेक्ट बर्थिंग भी नहीं मिल रही है भावनगर में। हजीरा साइड में, दहेज साइड में है, पर भावनगर में वो भी नहीं मिल रहा है। और धोलेरा तक लेके जाना, आई डोंट थिंक इट विल बी इन पाइपलाइन फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स गवर्नमेंट के, क्योंकि वो और ज्यादा ही डीप जा रहे हो आप धोलेरा तक लेके जाना किसी भी पोर्ट को, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास भावनगर में ही जगह है, उसको ही हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो वाई वी विल गो इनसाइड या और अंदर जाए। दूसरी बात जो कनेक्टिविटी है, अभी ये तो मैंने को आपसे जानने को मिला कि इसको डीएफआईसी से कनेक्ट कर रहे हैं, बट ये अभी जो कनेक्टिविटी है वो तो शायद आई थिंक स्टेट हाईवे ही है, जो अहमदाबाद से आ रहा है भावनगर की तरफ, उसके बीच में धुलेरा आ जाता है। तो ऐसा कोई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आप बना रहे हो, इसका हमें आइडिया नहीं है, तो अच्छा है, गुड अपडेट फॉर मी कि वो हो रहा है। एयरपोर्ट मान लीजिए ऑपरेट हो भी जाए, अभी आप देखो कंडीशन, ये सिमिलर कंडीशन होगी राजकोट और अहमदाबाद एयरपोर्ट। राजकोट एयरपोर्ट सिर्फ 4 घंटे की रास्ता पे है, तो और कॉस्टली बहुत ज्यादा हो जाता है राजकोट से फ्लाइट लेना है कंपेयर टू अहमदाबाद। तो मोस्टली लोग अहमदाबाद चले जाते हैं, वहां से फ्लाइट ले लेते हैं। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे तो आपके 65 किलोमीटर दूर है केवल बचेगा। 65 भावनगर है शायद 100 किलोमीटर से, जो बाद में डीएफआईसी में बता रहे हो 70 हो जाएगा। तो फ्लाइट्स कम रहेंगी, और दूसरी बात है कंप्लीट डेवलपमेंट, इतना बड़ा डेवलपमेंट होने में तो बहुत टाइम जाएगा, कि जो इतना ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ पे आ रही हो। दिल्ली में, मुंबई में फ्लाइट्स आती हैं, बड़ा एयरपोर्ट बनता है, उसका रीजन होता है क्योंकि वो एरिया कैटर कर रहा है काफी ऑडियंस को। भावनगर का, यहाँ धुलेरा का एरिया इतने बड़े लोगों को कैटर नहीं कर पाए, उनके पास जगह है इसलिए वो बड़ा प्लान कर रहे हैं। कोई भावनगर से आके कहाँ जाना चाहेगा, फिर दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी उसको, कहीं भी इंडिया के कहीं पार्ट में जाना है। बट मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता इस टाइप के एयरपोर्ट हैं जो कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, लोग वहाँ पे क्राउड है। यहाँ पे गुजरात की पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जानना है कि ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये बेसिकली धोलेरा को जो गवर्नमेंट ने मार्क किया है, जैसे गिफ्ट सिटी को मार्क किया है, तो कुछ प्रोजेक्ट जो है गिफ्ट सिटी के बाहर में आते हैं, गिफ्ट सिटी के लिमिट्स में नहीं आते हैं वो, लेकिन अपने आप को गिफ्ट सिटी बोलते हैं वो लोग, लेकिन गिफ्ट सिटी के बाहर आ रहे हैं वो। गिफ्ट सिटी मार्क्ड है मैप पे। तो आपके जो ये प्रोजेक्ट हैं आरएससी ग्रुप वाले, ये गवर्नमेंट के जो धुलेरा स्मार्ट सिटी मार्क की है उसके अंदर में है कि उसके बाहर में है, और इसके क्या रेट, प्लॉटिंग का क्या रेट चल रहा है। और दूसरी बात कि अगर आपको बोल रहे हो कि आप श्योर हो कि 10-5 साल में इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स हो जाएगा, तो आई डोंट सी अ रीजन कि जो डेवलपर है वो क्यों बेचना चाहेगा। वो 5 साल बाद बेच लेगा अगर 10 गुना रेट मिल रहा है तो, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई कमी नहीं है पैसे की, और वो उसके पास है जमीन, तो वो 5 साल और होल्ड कर सकता है। फ्यूचर इज नॉट इन 5 साल का नहीं है फ्यूचर, लॉन्ग टर्म है। ओके, अभी मैं वेरी गुड क्वेश्चन सर, मैंने आपके सारे क्वेश्चंस भी लिख भी लिए हैं एंड वन बाय वन मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये बात तो सर आपने बिल्कुल ठीक बोली कि गुड़गांव से कंपैरिजन करना इसको बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि सर गुड़गांव मेजॉरिटी जो है वो आईटी हब है, इंडस्ट्रियल हब है ही नहीं।
दुलेरा जो है आईटी हब भी है और इंडस्ट्रियल हब भी है, तो इसको गुड़गांव से कंपेयर करना तो सर गलत ही होगा, क्योंकि हम एक ही इंडस्ट्री को वहाँ केटर कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों इंडस्ट्रीज हैं। जैसे आज गुड़गांव के पास खुद का एयरपोर्ट नहीं है, दुलेरा के पास खुद का एयरपोर्ट है। गुड़गांव में आज टाइम लगेगा इसको, अभी कुछ नहीं, नहीं है, अभी मैं बनेगा। सर वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। वहां पर ऑलमोस्ट जामनगर में आपका आप सिर्फ सर इसी 15 जगह साल रहते हैं, बगल में, वहां पर 1000 डंपर से ज्यादा काम कर रहे हैं एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ द डे। बट दोस गाइस आर नॉट टेकिंग फ्लाइट्स। जो नहीं डंपर्स सर, मैं आपको कुछ और, फ्लाइट उनके लिए नहीं बन रही, एयरपोर्ट तो बना रहे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। तो एयरपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर जो है आपने बोला जो फाइनेंशियल क्राइसिस आज गिफ्ट सिटी को फेस करे हैं, उसी चीज को दुलेरा में टेक केयर कराए किस तरीके से। जैसे यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है, उसमें 51% की इन्वेस्टमेंट ताइवान गवर्नमेंट की है, ओनली 49% टाटा की है, एंड टाटा उन्हें अपनी इंजीनियर्स और लेबर दे रहा है। सो पूरे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ताइवान के अंदर ही सेमीकंडक्टर चिप बनती है। इन द वर्ल्ड का ये पहला प्लांट होगा आउटसाइड ताइवान जो दुलेरा में लग रहा है। बट ये प्लांट की प्रेमाइसिस कितनी होगी स्क्वायर किलोमीटर में, अगर देखें सर प्रेमाइसिस? 800 ऑलमोस्ट 800 एकड़ में ये पूरा प्लांट है। एकड़ में आपका प्लांट है ये, तो ये करीब हुआ जाके 4 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, 4 से 5 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, वही गिफ्ट सिटी का साइज है। ये सेमीकंडक्टर आया है, क्राइसिस हुई जब वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की 3-4 साल पहले, उसके बाद से सेमीकंडक्टर पिकअप हुआ, गुजरात गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी देखी और लैंड अवेलेबल किया। बट ये धोलेरा बिक रहा है 15 साल पहले से, सेमीकंडक्टर तो अभी आया है। अब ये धोलेरा को बेचने का नया तरीका निकाला है कि अभी इसको हम सेमीकंडक्टर से आपकी तरह बेचेंगे। उस धोलेरा को नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर किसी भी शहर की जब शुरुआत होती है, जैसे आज यहाँ पर गुड़गांव में भी हुई, तो गुड़गांव में आज सबको पता था डेवलपमेंट होना है, बट डीएलएफ ने तब भी 200 रुपए का गज से प्लॉट बेचना चालू किया। धीरे 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 उसने ग्रो करा, क्योंकि आज जो डेवलपर है, डेवलपर का एक काम होता है कि एक प्राइस पे सेल करना और फिर आगे उस तरीके को बढ़ाना, क्योंकि उसे भी अपने पैसों की आज लिक्विडिटी चाहिए ग्रोथ करने के लिए। तो आज एक प्रॉपर्टी 200 रुपए गज से लेके 4 लाख रुपए गज तक की हो गई। वो डीएलएफ को भी पता था, बट वो उतना होल्डिंग पीरियड हो, बिकॉज ही इज डूइंग बिजनेस। उसके पास फंड्स आएंगे तो वो कुछ और नया डेवलप कर पाएगा, अपने आप को धीरे धीरे स्केल अप कर पाएगा। दूसरा पॉइंट सर आपने पूछा था, यहाँ पर सर आईटी हब है। आईटी हब में ऑलरेडी इनकी गूगल से बात चल रही है। गूगल अपना इंडिया का कॉर्पोरेट ऑफिस दुलेरा में बना रहा है, इसकी भी मैं आपको न्यूज शेयर कर दूंगा। और इंडिविजुअली सर अगर देखा जाए, ये जो प्रोजेक्ट है, आपने पूछा था कि ये दुलेरा से बाहर है या अंदर है, 100% ये दुलेरा के अंदर है सर। टोटल दुलेरा के, जैसे आज गुड़गांव में ऑलमोस्ट 105 गांव लगते हैं, दुलेरा में टोटल 33 वहाँ तालुका बोलते हैं, वहाँ तालुका लगते हैं। तो उसी 33 तालुका को मिला के 920 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, और उसी 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इसी रेंज के अंदर कर रहे हैं। तो इट इज नॉट आउटसाइड दुलेरा। फिर दूसरा सर आपने बोला था कि इसकी कनेक्टिविटी अहमदाबाद। सो अहमदाबाद जस्ट अ कनेक्टिविटी, कि वहां पर आज अहमदाबाद को लोग जानते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? Yes, you are. सो Varun is audible. अहमदाबाद की आज सिर्फ कनेक्टिविटी इसलिए बताई जाती है कि लोगों को भावनगर भी कम पता है, लोगों को दुलेरा भी कम पता है, लोगों को राजकोट भी कम पता है। सो अहमदाबाद और गांधीनगर एक ऐसी जगह है जो लोग गुजरात को रिलेट कर पाते हैं। इट्स जस्ट अ रिलेटिव पॉइंट। इटसेल्फ अहमदाबाद से दुलेरा का कोई कनेक्शन नहीं है। दुलेरा अपने आप में एक संपूर्ण शहर है। जो शॉर्टकमिंग शायद और किसी शहर में रही होगी, वहां पर ये शॉर्टकमिंग्स की इन्होंने कोशिश करी कि वो शॉर्टकमिंग्स ना आए। पूरा का पूरा शहर बन रहा है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल न्यूज में बड़ा हॉट चल नहीं, रहा अभी है, कुछ दिन पहले निर्मला। न्यूज पढ़ी थी मैंने कि गूगल अपने रिलायंस अपना जियो वाला प्लांट, जियो फोन का, वो भी धुलेरा शिफ्ट कर रहा है, जिसमें हाँ जी, जिसमें कि गूगल का ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी सर। ये कुछ एक दिन चीज पहले और, की न्यूज है ये। निर्मला सीतारमण जी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में हॉट रहती है, तो उनके हर दूसरे स्टेट ऑल्टरनेटिव डे में उनकी स्टेटमेंट्स में दुलेरा को लेकर प्रमोट करने का स्टेटमेंट्स रहती हैं।
और उन्होंने बोला है कि दुलेरा इंडिया का पहला ऐसा SIR जोन है। अगर हमें हिंदुस्तान को डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी में लेके जाना है तो हमें हिंदुस्तान में ऐसे 5 नए दुलेरा क्रिएट करने होंगे, because we have to be much more dependent on our exports as compared to imports. A country can only grow when they can increase their exports at compared to imports. तो यहाँ पर ये थॉट इस बिल्कुल विजन क्लियर है गवर्नमेंट का कि यस फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होंगे, सो उन लोगों ने विजन ऐसा चेंज कर दिया है कि आउटसाइड इन्वेस्टमेंट आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें। जैसे आज ताइवान के अंदर मैक्सिमम फंडिंग जो आ रही है वो ताइवान से आ रही है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का होना ना होने मतलब फाइनेंशियली एक बराबर है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू एक्सपैंड। उनके पास लिमिटेशन है मैन पावर की। आज हमारी जितनी भी कार्स हैं ADAS फीचर होता है, सो ADAS की जितनी भी गाड़ियों की वेटिंग होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द वो चिप की अवेलेबिलिटी कम है, इस वजह से वेटिंग पीरियड ज्यादा है। तो वही चीज इंडिया में जब सेटअप हो जाएगी तो ADAS एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा और डिलीवरी टाइम भी कम हो जाएगी, तो गाड़ियां और सस्ती हो जाएंगी। एट द सेम टाइम गल्फ ऑफ कंबाट में वेनेडियम की फाइंडिंग हुई है, विच इज अ वेरी बोलेंगे जैसे एक मिनरल रिसोर्स, मतलब एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देगा गुजरात गवर्नमेंट को वेनेडियम की फाइंडिंग, क्योंकि वेनेडियम इज अ वेरी प्रीशियस अर्थ मेटल, वो बहुत कम जगह मिलता है एंड इट हेल्प्स इन योर कार, लिथियम कार आयरन बैटरी को बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई थिंक सो सर मैं जवाब दे पाया। वेरी वेल। मेरा थोड़ा सा स्केप्टिकल है एक्चुअली, बट यही है कि एक्चुअली मेरे को वही धोलेरा डिस्ट्रिक्ट एक चीज है और धोलेरा स्मार्ट सिटी एक चीज है। तो आपका प्रोजेक्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी में है कि धोलेरा डिस्ट्रिक्ट में है? धोलेरा स्मार्ट धोलेरा सिटी में है स्मार्ट सर, सिटी। और ये पिछले 5 साल से भी बिक रहा है और अगले 5 साल भी बिकेगा और अगले 15 साल भी बिकेगा, क्योंकि गुड़गांव है वो 1980s से बिकना शुरू हो रखा है, आज 40 साल बाद तक भी बिक ही रहा है। और आपने अभी शायद सुना होगा साउथ कोरिया ने अपना कैपिटल चेंज किया है, आई फॉरगेट नेम ऑफ दैट सिटी। उसको उन्होंने 15 साल पहले डेवलप करना शुरू किया था और 2030 में या 27 में उसको शिफ्ट कर रहे हैं। So any greenfield development takes time. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक हाँ टाइम। और ये एरिया भी हाँ, काफी बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है, सर अभी दिल्ली अभी बराबर के एक सेकंड, एक चीज मैं आपको पॉइंट करेक्ट करूंगा। जो 10 टाइम्स का एप्रिसिएशन बोला था वो मैंने 10 ईयर्स के लिए बोला है, ना कि 5 ईयर्स के लिए। लोकेश सर आपकी वॉइस जो है ब्रेक हो रही है। ओके, हाँ, सो आई एम सेइंग कि जो मैंने 10 टाइम्स एप्रिसिएशन बोला था उसके लिए 10 ईयर्स बोले थे, और 5 ईयर्स के लिए मैं 4 टाइम्स का एप्रिसिएशन लेके चल रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे राहुल जी को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2016 में जो प्राइस थे या आज से 5 साल पहले प्राइस थे और आज जो प्राइस चल रहे हैं उनमें 4-5 गुना का इजाफा हो चुका है, और इसी तरीके से ही ये प्राइस हमेशा इंक्रीज ही करते रहेंगे। तो 2016 क्या मैं करूं, 2011 से भी बिक रहा है ये, और ये 2042 तक, 2050 तक भी बिकेगा। राइट राइट। हाँ, तो बिकेगा ये, और ये मतलब एक्चुअली हम विटनेस करेंगे। गिफ्ट सिटी को मैंने देखा है। हाँ गिफ्ट सिटी जो 2016 से 20 तक था हाँ वो ज्यादा मार्क डिफरेंस नहीं आया उसमें। तो हमारा क्या है, जो आप कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो वो होल्ड करता है, हाँ अपने होल्ड रहता है। हाँ अगर आपको उतने दिन तक रिटर्न नहीं है और ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं है, आप यू आर एक्चुअली लूजिंग योर कैपिटल, जो इंटरेस्ट है या वट एवर आप कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। जब एक्चुअली आपको, जैसे गिफ्ट सिटी में किसी ने 2020 के आसपास इन्वेस्ट किया है, उसको जो रिटर्न है और जिसने 2015 में इन्वेस्ट किया है, रिटर्न सेम आ रहे हैं। तो जो 5 साल आप अपने पैसा को होल्ड करके रखते हो वहाँ पे, वेट करते हो, मान लो अगर अप्रिसिएशन आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स मिल भी जाता है, बट आपको पैसा आपका हेल्ड है वहाँ पे, हेल्ड अप है, और उतने टाइम पे कहीं आप अगर ग्रो कर सकते हो, तो इस एंगल से भी लोगों को सोच लेना चाहिए। अगर उनके पास पैसा है कि उनको कोई टेंशन नहीं है, कि जैसे मरीनर्स के पास होता है पैसा, इतना पैसा पार्क करके 15 लाख 20 लाख छोड़ दिया, तो हमें कोई इशू नहीं है उनको कि बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो उतना तो है ही है, लैंड तो है ही हमारे पास। दूसरा मेरा ये पूछना था कि आपका ये जो प्राइसिंग है पर स्क्वायर फीट का क्या रेट है, और प्लॉट का एरिया का साइज क्या है? पर स्क्वायर यार्ड का रेट है यहाँ पे 6500 का,
और प्लॉट साइज हमारे पास में लगभग ऑन एन एवरेज मतलब वी कैन से कि 200 गज के आसपास का हुआ है। 200 एंड गज के। तीसरा, जैसा वरुण भाई ने इनिशियली बताया था कि दिस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वी आरसेल्फ आर नॉट सेइंग कि ये शॉर्ट टर्म है एंड इट इज इजीली मतलब ट्रेडेबल, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको जब भी लिक्विडेट करना हो वी कैन सेल इट ऑफ, जो भी एप्रिसिएशन होगा मतलब इट विल नॉट स्टक, ऐसा नहीं होगा कि आप उस पैसे को यूज नहीं करोगे। मतलब उसकी ट्रेडिंग कभी भी हो जाएगी, जो भी प्राइस पॉइंट उस टाइम पे चल रहा होगा वो चीज आपको मिलेगी फॉर श्योर। लेकिन हम खुद ही इस चीज को एडमिट कर रहे हैं, और वरुण भाई ने सबसे पहले स्टेटमेंट ही यही बनाई थी कि दिस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें हम 10 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं। और ये इसमें वहाँ पे आपका भी क्या जंतरी रेट और जो आपका सेलिंग रेट है उसमें कितना डिफरेंस है? सर जंतरी रेट वहां पे लगभग 4,000 रुपए के आसपास का चल रहा है, और ये सेलिंग रेट है ये 6,500 के आसपास का है। तो पूरा आप 6,500 पे रजिस्ट्री करते हैं कि आप 4,000 वाले पे करते हैं? जैसा आप कहोगे उस पे कर देते हैं। मतलब 100% वाइट में भी हो जाता है इसमें? यस यस। तो फाइन सर फाइन। इसमें अगर पर स्क्वायर फीट की बात करी जाए तो 722 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। और 722 सही है। यस सर, इट्स वेरी क्योंकि आज ये प्राइस, आज रियल एस्टेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है किस प्राइस पे आप एंटर करें और किस प्राइस पे आप एग्जिट करें। योर एंट्री पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। एंड ये सर एक एक जैसे एक तरीके की एफडी, जैसे आज वी बिलोंग टू एन इंडियन मेंटालिटी, इंडियन माइंडसेट। हम लोग कुछ ना कुछ पैसा एक एफडी में जरूर रखते हैं कि राइट। हमारे एक इमरजेंसी में हेल्प हो जाएगा। तो 20, 25, 30 लाख रुपए की हर कोई एक एफडी बना के रखता है। मतलब हर कोई भी नहीं, मैं मरीनर्स का तो बोलूंगा एटलीस्ट कि एक मेरा एक इमरजेंसी फंड है जो मैं कभी भी लिक्विडेट कर सकता हूँ। सो अगर जैसे 30 लाख रुपए की अगर हम कहीं एफडी करते हैं तो वो हमें 6.5% का रिटर्न देते हैं, 6 to 6.5। तो देयर इज अ वेरी वेरी इजी फॉर्मूला कि जो भी आपकी आरओआई आ रही हो उसको 72 से अपनी आरओआई को आप डिवाइड कर देते हैं तो यू गेट द इन्वेस्टर ईयर कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो रहा है। सो अगर एफडी को 72 डिवाइड बाय 6.5 करते हैं तो 11 ईयर्स में आपका पैसा जाके डबल होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसा आपका 10 साल के लिए रख रहे हैं, 10 साल में 10 गुना हो रहा है। तो मतलब हर साल आपका पैसा डबल हो रहा है। Yes, you have to keep it for a long time to see that vision. राइट। So इसलिए मैंने पहले ही बोला कि 10 साल हमें चाहिए ही चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि ट्रेडेबल है, तो क्या बिल्डर ही खरीद लेता है वापस अगर आपको बेच के निकलना है? सर वी हैव अ टीम ओवर देयर, वी असिस्ट यू इन द रीसेल आल्सो, एंड बहुत सी बार बिल्डर भी बाय बैक कर लेता है। बिल्डर के डेवलपर। अभी मैं बताता हूँ, जो प्राइड प्रोजेक्ट है फुल्ली डेवलप्ड है, बिल्डर उसमें बाईबैक कर रहा है। एंड यू आर सेइंग ना कि बिल्डर अपने आप होल्डिंग क्यों नहीं करता, सर बिल्डर भी अपना रिस्क ऐसे वो करता है, असेसमेंट करता है। तो जो चीज़ उन्होंने लेट्स से उस टाइम पे 5,000 के, एक डिफरेंट प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 5,000 पे उन्होंने बेची थी, आज वो 7,500-8,000 पे ट्रेड कर रही है। बिल्डर उनको 7,000 रुपए तक बाईबैक की वो दे रहा है अपने को, तो मतलब उस पे कर रहा है। तो बिल्डर को मालूम है कि बिल्डर को जब उसने बेचना शुरू किया था उस टाइम पे ये टाटा का जो डिफेंस एयरक्राफ्ट है वो न्यूज़ नहीं थी। टाटा का जो ये सेमीकंडक्टर की बात करूँगा इसका अप्रूवल नहीं आया था, क्योंकि ये तो अभी 29 फरवरी को ही आया अप्रूवल। तो उस टाइम पे उसने खुद सस्ते में बेच दी थी। लेकिन अभी जो एयरपोर्ट की कंप्लीशन की स्पीड है, एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन की स्पीड है, टाटा सेमीकंडक्टर के कंप्लीशन की स्पीड है, इनकी वजह से वहां पे एकदम से जंप आया। तो बिल्डर ने खुद रियलाइज किया कि यार इस पे अप्रिशिएशन और ज्यादा आएगा। तो बिल्डर ने बोला कि ठीक है, अगर आप मेरे को ये मतलब इस रेट पे अगर वापस बेचना चाहते हो आई एम ओके। बट एट द सेम टाइम बिल्डर की साइड से इस चीज का कोई कमिटमेंट नहीं होता है कि हम आपके प्रॉपर्टी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हाँ, वो हमारे पास में एक रीसेल टीम होती है, एज वरुण सेड कि वी हैव 18+2 ऑफिसेज, जो 3,000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वी हैव डेडिकेटेड अराउंड 500 रिसोर्सेज जो सिर्फ रीसेल पे ही काम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर आपका राहुल सर रह गया था, मैं इसको एड्रेस नहीं कर पाया। आपने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारी मिस सेलिंग होती है, एक एक नाम पे दो दो रजिस्ट्रीज होती हैं। तो आज से करीब सर 2 महीना 3 महीने पहले मैं सीटाडेल की मीटिंग में आया था, तब मैंने एक चीज मेंशन करी थी कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर हम गेटेड कम्युनिटी के अंदर करते हैं तो वो 100% सेफ होती है। तो हम जो ये जितने भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एज इन्वेस्टर्स क्लिनिक, वी आर 18 years इन द मार्केट।
तो it gated community के अंदर प्रोजेक्ट है, इसकी इमीडिएटली रजिस्ट्री होती है एंड दिस रजिस्ट्री शोज ऑन योर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, which is anyror.gujarat.gov.in। तो गवर्नमेंट आप अपनी लैंड रजिस्ट्री रिकॉर्ड पे भी ऑनलाइन देख आपका सकते नाम हैं। है। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, फ्रॉड करने को तो सर आज गुजरात मतलब गुजरात के, आप गुड़गांव की मैं बात करूंगा, गुड़गांव में भी लोग इस तरीके की करने की कोशिश करते हैं। उसकी यहाँ पे तो निकालते हैं 7-12 बोलते हैं यहाँ पे हाँ, गुजरात में। 7/12 बोलते हैं, तो 7/12 में आपका नाम होगा। 7/12 के बाद में जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो 7/12 से ही मतलब एपीआई से फेच करके डिटेल निकालता है, तो उस पे भी नाम दिखता है। फिर ये था कि काफी न्यूज चलती थी इसमें कि सर वहाँ पे सेलिंग हर हुई है। जगह चलता है, देखो जहां भी अपॉर्चुनिटी होती है ना, वहां पे सर फ्रॉड भी उतने ही ज्यादा घुसते हैं। धोलेरा का काफी नाम आ रहा था। अभी तो मैंने उधर, मैं इस जामनगर में हूँ तो उस साइड का ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, आप एक बार सर है। और जाके आइए, टू धुलेरा एक बार प्रोजेक्ट विजिट करके आइए। आपका परसेप्शन बदल चुका है, अभी मैं बता रहा हूँ, बदल जाएगा जब अभी की इसमें आपके प्रोजेक्ट में रेरा एप्लीकेबल होता है? नहीं सर, इसमें रेरा एप्लीकेबल नहीं होता है। हम डे 1 पे आपको पोजीशन दे देते हैं, तो जिस भी प्रॉपर्टी में आपको पोजीशन मिल गया साथ के साथ में उसमें और रेरा जैसे की। आपने जो एमिनिटीज उसमें बताई हैं, हाँ वो जी। रेडी हैं कि वो नहीं, बनेंगी? वो रेडी बनने में 6 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमने निकाला ही मरीनर्स के लिए है, तो ये चीजें हम बनाने में टाइम लगेगा एट द सेम जो टाइम। आपके एग्जिस्टिंग जो आपने प्रोजेक्ट सेल कर चुके हाँ हैं उसमें सारी एमिनिटीज मिल चुकी हाँ, उसमें हैं? एमिनिटीज एक्सेप्ट क्लब हाउस, बाकी सारी चीजें आ चुकी हैं। जैसे जो मैं उसकी बात कर रहा था, प्राइड की बात कर रहा था, उसमें क्लब हाउस अभी येट टू बिल्ड है, बाकी सारी एमिनिटीज हो चुकी है। और कंक्रीट रोड वगैरह ये सब ऑलरेडी यस, आप कर चुके हैं उसमें? बिल्कुल। फाइन। वरुण के ही 2 प्रोजेक्ट का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये जमीन अगर 200 स्क्वायर यार्ड 13 लाख की पड़ रही है, तो इसने एक आदमी को जमीन दिखाई थी जहां बोला था कि 200 स्क्वायर यार्ड जमीन है, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर होगी, 4 करोड़ में भी नहीं मिल रही थी। तो ये गुड़गांव से भी मतलब 20 किलोमीटर आगे, साउथ ऑफ गुड़गांव बोलते हैं उस जगह को। सोना। तो दिस इज, हाँ, सोना। हम्म। तो वहां पे 4 करोड़ में भी नहीं मिल रही थी जमीन। तो एक हम लोग को रियल एस्टेट में, मैंने अभी तक, मेरे पापा भी रियल एस्टेट में ही है, तो अभी तक हम लोग को कभी भी जमीन पर नुकसान नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर क्लियर जमीन है तो उस पर आज तक नुकसान नहीं हुआ है। पर रियल एस्टेट में, अपार्टमेंट में बहुत नुकसान हुआ है रीसेल में। अभी ऐसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक 40 लाख का अपार्टमेंट खरीदा था 2016 में कैलकाटा में, मैं उसको 40 लाख का ही बेच रहा हूँ अभी, जनवरी में रजिस्ट्री कराने जा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हो सर। बिल्डर के ही नहीं बिके हैं वहां पे अपार्टमेंट। हाँ बिल्कुल, क्या होता है कि अपार्टमेंट में क्या होता है कि सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि हर आदमी जो खरीद के जो उसको यूज करने वाला होता है ना, उसके मतलब इमोशनल एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी किचन ऐसी होनी चाहिए, मेरा लिविंग रूम इस साइज का होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो वो हमेशा ही थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन वो आपका जो प्लॉट है, मतलब ये एक ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से बनाते हो। और किसी एक समझदार आदमी ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई थी जब मैं लास्ट ईयर इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया था, कि प्लॉट इज जस्ट लाइक आपका गोल्ड बिस्किट, जो ना तो आपको खरीदते टाइम पे मेकिंग चार्ज लगते हैं, ना ही मतलब बेचते टाइम पे उस पर कुछ इम्प्योरिटी करती है। लेकिन अपार्टमेंट इज जस्ट लाइक ज्वेलरी, खरीदते टाइम भी मेकिंग चार्ज लगते हैं, बेचते टाइम भी उसकी इम्प्योरिटी करता होता है। तो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की सबसे अच्छी, सबसे सेफ और सबसे अच्छी ग्रो करने वाली होती है। उस समय मेरे भाई ने 8 लाख रुपए का बहुत छोटा सा बनारस से भी आगे प्लॉट लिया था, जो अभी उसने बेचा 3 करोड़ रुपए का। क्योंकि एज अ टूरिज्म प्लेस बनारस बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो उसके हिस्से 1.16 लाख का टोटल प्लॉट था, जिसमें आधा मेरे भाई का था। एंड ही सोल्ड दैट ऑफ सिग्निफिकेंट मनी, अर्निंग 1.5 सीआर उसको हो गया। और मैं अपना, मेरा ऑलमोस्ट 5x का इन्वेस्टमेंट था जिसपे 1 रुपया नहीं बढ़ रहा है। दैट हैज हैपेंड। ये, और ऐसा नहीं कि मेरी ही स्टोरी है, ये आप आपके फैमिली में भी आप देखोगे, लैंड इन्वेस्टमेंट, अगर लैंड क्लियर्ड है, वो तो एक एक जगह, भुवनेश्वर में जब मैं काम कर रहा था तो वहां भी ये बहुत चल रहा था कि एक ही जमीन पे 3 3 लोगों की रजिस्ट्री हुई थी। और फैकल्टी लोग इसमें बहुत चपते थे, कोचिंग इंडस्ट्री के, कि जमीन तो ले लिया पर 2 2 लोग रजिस्टर्ड। तो ये, अगर ये क्लैरिटी है और द लैंड इज क्लीन, तो अगर गवर्नमेंट जितना बोल रही है उसका 20% भी अचीव कर लेती है, तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। Yes, sir. True that, sir. I think Achal Gupta wants to ask something. Achal ji, please. जी, हाय।
just another couple of follow-up questions. एक तो ये जो मरीना बे की बात करें हम लोग, what is the promised delivery of the project? And secondly, is there any penalty clause? Penalty clause as in if the promised amenities are not delivered or not up and running by the set date, then what is the penalty clause from that side? That we as investors can, it will work as a safeguard for us. तो इसमें जो डेवलपमेंट का है, Yeah, there's just one more question which could be not much relevant to you, sorry. And we are discussing about RSC, but I'm sure Dholera being such a wide land parcel, can you also just take names of few of the other developers just to get a comparison and see what is the competition in that area? I'm pretty sure कि वहाँ पे और भी developers होंगे who must be trying to mint it. ये 3 questions हैं, you can please answer. तो अगर डेवलपर्स की मैं बात करूं तो यस देयर आर लॉट ऑफ अदर डेवलपर्स एज वेल, ठीक है। एंड इवन वहाँ पे ऐसे भी लोग डेवलपर बने बैठे हैं जो फार्मर से टोकन पे अमाउंट दिया है और उस प्लान पे वो अपनी प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मतलब वो भी लोगों को बेच रहे हैं जो उसके खुद के नाम पे रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर डेवलपर्स जो यू कैन फाइंड देम ऑन थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूंगा सर। हमने ये डेवलपर इसलिए चूज करा क्योंकि आज जैसे डीएलएफ की सक्सेस स्टोरी इसलिए थी क्योंकि उसके पास लैंड बैंक था। आरएससी जो है राम सिंह चौडशमा, ही बिलोंग्स फ्रॉम दुलेरा इटसेल्फ, और मेजॉरिटी ऑफ द लैंड पार्सल इस डेवलपर के पास डे 1 से है, जो किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये वो डेवलपर है जो आगे किसी डेवलपर को जमीन दिलाते हैं। तो ये वहां के एक तरीके के डीएलएफ है। दूसरा, ये गवर्नमेंट के साथ उनके वेरियस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोवाइडिंग ऑफ द मैन पावर टू द सिक्योरिटी सिस्टम टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हर जगह इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज कहीं पर भी रियल एस्टेट के अंदर ना सर, जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इंटेंट। अगर किसी डेवलपर का इंटेंट अच्छा है ना तो वो ग्रोथ करता है। So आज यहाँ he belongs from army background and having a lot of land parcels involved in various government activities. He has been recognized by Gujarat government for extraordinary services towards Dholera. इनको अवार्ड भी मिला है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने इनको इसलिए चूज करा कि इनका इंटेंट अच्छा है। I understood your point, but still, can you name a few of the other developers so that I can do some of my own ground study and do comparisons? See, it's a very good thing that he has such a fantastic background, which is very nice, but my focus is entirely on my investment. So I have to do cost-benefit analysis and सर, risk analysis. इनसे बड़ा तो कोई नहीं है, बट आप थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स आप 7 ओक्स के देख सकते हैं। 7 ओक्स के आप देख सकते हैं। 7 ओक्स एक डेवलपर है, ठीक ठाक काम कर रहे हैं वहां पर। ऑलराइट, ठीक है। And how about Marina? जो मेरा second question था, what is the promised delivery of the project? What is the penalty clause if there is any? So there's a 6 months delivery time, क्योंकि ये अभी ही हमने सब पूरा वर्किंग करी है, तो 6 months डेवलपर को भी चाहिए काम करने के लिए उस पे। और पेनल्टी क्लॉज सर ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, बट यूजुअली तो सारे रेप्यूटेड बिल्डर्स में पेनल्टी क्लॉज होता ही है ना। विजन अच्छा है। नहीं, विजन तो ठीक है, विजन नहीं तो सर, सबका अच्छा क्लब होता है, हाउस विजन आपका भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है। नहीं सर, नहीं यहाँ कहीं But पर what is भी the guarantee that I will invest even a 10 lakh rupee? It's not a Yes, very sir. big amount, but it's also not a small amount. True. मुझे वहां से कुछ रेंट नहीं मिलेगा. My entire appreciation will solely depend on the luck, on the government's vision, and how the things turn out practically. The Yes. rest of the thing is कि the project itself is it sustainable. लेकिन अगर उसमें भी amenities नहीं मिली, तब तो it's a completely lost situation, right? So amenities मिलना तो उसके अंदर developer एक के हाथ क्लॉज में होता है. है, It is completely independent. एक क्लॉज होता है ओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अगर डेवलपर वो सारी एमिनिटीज नहीं देता है तो उसे ओसी नहीं मिलता है। और यहाँ पर वो रजिस्ट्री, that is not in my favor. OC is a different thing. OC तो तभी OC के बाद में ही आप ये रजिस्ट्री कर सकते हो ना। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ सर। तो उसमें जो गवर्नमेंट है कि अगर वहां पर क्या है कि जो डेवलपर गवर्नमेंट को कुछ अपनी ऐसी लैंड उस तरीके की मॉर्गेज कराता है, अगर वो चीजें पूरी नहीं, गवर्नमेंट के पास पूरी लैंड चली जाती है। तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज को लेके।
तो डेवलपर को Okay, बनानी ही but बनानी है, मतलब पेनल्टी क्लॉज वो तो नहीं है, ठीक है, but it doesn't बट ही इज answer my बीन बाउंड, question. he is been bound to deliver it. See, it's a very simple thing. Whatever is the obligation and whatever is the answerability until now, what we have explained is between the government and the developer. Me being an investor, गवर्नमेंट और डेवलपर के बीच में हाउ डज द थिंग्स वर्क आउट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, उसमें कहीं पे भी मुझको तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा ना इन केस ऑफ दिस थिंग गेट्स टोल्ड. अगर एमिनिटीज नहीं It बना will पाया, not बिल्डर बोल be देगा कि गवर्नमेंट की देयर इज सम हिकअप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, या जब गवर्नमेंट ही हमको बिजली सप्लाई नहीं करी है तो हम अपने घर से जो डीजल जनरेटर आके नहीं लगा सकते, व्हिच एक्चुअली could हैपेंस be इन सर, गुड़गांव. अगर आप अगर गुड़गांव का सर इतना एग्जांपल दे रहे हो, नो नो नो, लेट मी क्लियर. आप गुड़गांव के जैसे इतने एग्जांपल्स दे रहे हो, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ उसके अगल बगल में देयर 20 सोसाइटीज व्हिच हैवंट गॉट ओसी अंटिल नाउ, ट्रू right? ट्रू ट्रू But the builder, because the builder has the owners, builder has promised, like you said, builder's intent is good. So builder gets the water and the electricity on his own expenses until the such OC is delivered. After the OC is delivered, that means builder has already got corporation का पानी और electricity. तो ये अगर builder का intent अच्छा है and builder wants to attract more customer base, why not such a thing is being promised or included in the project? बात इसके लिए बात करी जा सकती है, बात कर लेंगे सर डेवलपर से कि इस तरीके क्योंकि ये से तो कुछ लिख के बेसिक देता सेफ्टी है। है ना एक इन्वेस्टर की. हाँ, क्योंकि आप तो इससे गवर्नमेंट के बारे बात में तो ठीक है, मतलब बिल्डर तो बोल देगा जी गवर्नमेंट ने हमको दिया ही नहीं, गवर्नमेंट अगर रोड ही नहीं बना रहा तो मैं कैसे आपकी गाड़ियां तक अंदर ले आऊं. ट्रू ट्रू तो ट्रू वो तो इस चीज के लिए बट दैट पेनल्टी इज की वेयर, बात करी जा सकती है कि कुछ ऐसा रिटर्न because में दे दे, I feel एंड as an एट द investor having gone through so many projects, this is a basic safety which any investor would look for, be it वी a कैन plotting, टॉक be it a development. Yeah, वी कैन टॉक ये वाली एंड सर आपने जो वो चीज ठीक प्रोजेक्ट्स है. जो रुक जाते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द हाई राइज या लो राइज, यहाँ पर प्लॉट्स में इतना कोई डिलीवरी में इश्यूज कमी आते हैं, बट ये आपका जो I क्वेश्चन है इस चीज के लिए understand. डेवलपर से बात कर लेंगे सर. डेवलपर क्योंकि देखिए आई अगर डोंट मैं थिंक भी सो इसको कि एज इन्वेस्टर डेवलपर ले रहा हूँ और अगर वहां पे अगर डेवलपर मुझको ये कल को चल के 5 साल में मुझको आगे सेल ऑफ करना है एंड आई एम सेलिंग इट टू समबडी हु इज रियली क्रिटिकल एंड स्केप्टिकल, व्हिच इज अ वेरी गुड क्वालिटी इन एन इन्वेस्टर, वो तो बंदा यही बोलेगा ना जी मैं आपका प्लॉट क्यों लूं, आई वुड रादर बाय फॉर समथिंग व्हिच इज 10 टाइम्स मोर वर्थ. बट आई कैन सी पीपल लिविंग अराउंड, जैसा वाटिका हो गया, गुड़गांव में हम बात कर रहे हैं तो गुड़गांव में वाटिका है. इफ आई नाउ गो एंड बाय अ प्लॉट ऑफ वाटिका इन सेक्टर 80 to 85, I can see a meter which is right there. I can see a number plate and name plate of the plot. I can actually, as we speak, I can make a home there and I can live. Dhulera is of course a different thing, but at least अगर बिल्डर की इंटेंट अच्छी है तो मैं यही बोल रहा हूँ. दिस इज एन बात कर एसेंशियल सकते हैं. आई फैक्टर. डोंट थिंक सो यस बिल्डर इस चीज को मना करेगा. यस, we'll should not be. we'll get some अगर provision done like this. We can definitely talk to the builder for this, and I don't personally think कि वो इस चीज के लिए मना करेंगे, कुछ ना कुछ वो कर देंगे जरूर से. आई हैव जस्ट वन मोर क्वेश्चन. अभी Alright. आपका जो है ये बैंक अप्रूव्ड है? सर दुलेरा में बैंक लोन्स नहीं मिलते प्लॉटिंग पे. इस चीज का लोकेश सर आप एक बार थोड़ा सा बेटर देखो एक्सप्लेन कर दो. बैंक क्या करता है कि देर आर टोटल 47 चेक पॉइंट्स, जहाँ पे चेक पॉइंट्स होने के बाद में बिल्डर किसी प्रॉपर्टी को लोन करता है. एंड धुलेरा की प्रॉपर्टी अभी उस चीज़ के लिए बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है वहाँ पे. सो अभी वहाँ पे बैंक लोन नहीं है और किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है. इवन जो आप सैंपल एरिया का जो एक्टिवेशन एरिया के अंदर की प्रॉपर्टीज हैं उन पे भी अभी बैंक लोन नहीं है. Okay, that is again also working against the promising of this land, क्योंकि जब गवर्नमेंट इसको इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर रही है, प्रमोट कर रही है, अपना विजन विजुअलाइज कराना है उसको, तो ये तो बेसिक असिस्टेंस है विच अ मिडिल क्लास इन्वेस्टर वुड लुक फॉर. अच्छा, पूरे दुलेरा में कहीं पर भी नहीं है, पूरे दुलेरा यार में देखो कहीं पर आप बात सही कर रहे हो अचल जी इस पे. आई एम नॉट मतलब सेइंग कि ये वो है, लेकिन हाँ हर चीज एक फेज्ड मैनर में होती है. वहां पे यस बैंक लोन भी, यस. हाँ सुनो सुनो, बैंक लोन भी आएंगे वहां पे. बाकी और जो चीजें हैं जैसे गुड़गांव का मेच्योर मार्केट जैसा हुआ है मतलब डेवलपर्स के साथ में, उस तरीके की भी चीजें आएंगी. इट विल टेक टाइम फॉर श्योर. एंड लेकिन उस टाइम पे लैंड प्राइसेस हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हो चुके होंगे. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस. एक ऑप्शन ये है कि हम चीजों को सेटल होने का, मेच्योर होने का वेट करें, परफेक्टली फाइन. एक ये है कि हाँ ठीक है यार मैं लेट मी मतलब सेल थ्रू द इसके विंड्स एंड उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ. अब क्योंकि हर चीज पे आई वुड से कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो अकॉर्डिंगली होता है. आज बिल्कुल गांव की मार्केट में कोई रिस्क नहीं है,
लेकिन रिवॉर्ड भी कम बचा है। सेम वे धुलेरा की मैं बात करूं, आज से 5 साल पहले बहुत रिस्की था, क्योंकि वो सारी चीजें प्रपोज थी 2016 में, जो मिश्रा जी ने अभी बताई थी, उस टाइम पे सारी चीजें प्रपोज थी, तो उस टाइम पे एक्सट्रीमली रिस्की था। लेकिन आज है उतना रिस्की नहीं है, लेकिन आज से 5 साल बाद में इतना भी रिस्की नहीं रहेगा। आज से 10 साल के बाद में आपको सारी चीज, बैंक लोन और रेरा और ये वो सब कुछ भी मिलेंगे। नाउ दिस इज आर कॉल कि हम उसको किस फेज पे एंटर करना चाहेंगे। हाँ मतलब आई एम पर्सनली कंसिडरिंग इट एज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हम्म, अब मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मेरा हाँ वो है, बिल्कुल। मेरा बजट कितना है फॉर द हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंपोनेंट ऑफ क्योंकि माय आज होल तो मैं बता इन्वेस्टमेंट। रहा हूँ, आज तो हमारे पास में इतनी चीजें बताने को और दिखाने को है, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, टाटा, ये वो। जब 2016 पहले जब मिश्रा जी बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो ये सारी सिर्फ स्टोरी बताई जाती थी कि यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर का प्लांट लगेगा, यहाँ पे कोई एडमिन बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पे कोई स्मार्ट सिटी बनेगी। तो आप ये देखिए, उन लोगों ने उस टाइम पे 500, 700, 1000 रुपए गज पे रेट पे भी जमीन ली थी, लेकिन उन्होंने उस रेट पे ली थी जो आज उनकी 5,000, 6,000, 7,000 पे हो गई है। आज अगर हम जो ले रहे हैं, और आज से 5 साल में बाद में टोटली सिनेरियो डिफरेंट रहेगा। उस टाइम पे बैंक लोन भी शायद दे रहा होगा, उस टाइम पे शायद रेरा एनफोर्समेंट भी आ चुकी होंगी, तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो उस टाइम के रेट अलग होंगे। तो ये अपने को डिसाइड करना है कि हमें किस प्राइस पॉइंट पे और किस रिस्क प्रोपोजिशन पे हमें एंटर करना है। दूसरा एक मैं एक जस्ट पॉइंट ऐड करूंगा कि प्राइस अप्रिशिएशन जनरली कहाँ पे आता है, हम्म, जहाँ पे लैंड पार्सल की कंस्ट्रेंट हो। हम्म, जैसे गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे कंस्ट्रेंट है लैंड की, तो वहाँ जब बिल्डर आना शुरू हुए तो प्राइस अपने आप जंप होने लगा। अब जैसे आप कोई भी सिटी डेवलप होता है, जैसे अहमदाबाद को ही ले लो आप, तो ये रिंग रोड एरिया है, उसके पास भोपाल एरिया है, सिंधु भवन रोड है, मिला है। ये सब पहले नहीं था। हम्म, तो लेकिन अहमदाबाद के पास लैंड है एक्सपैंड होने के लिए, हम्म, तो अहमदाबाद कोर का तो लैंड बढ़ गया, रेट बढ़ गया, हम्म, बाहर का रेट अब धीमे धीमे अब बढ़ेगा। तो हम्म, अहमदाबाद कोर का रेट ऑलरेडी बढ़ गया क्योंकि वहाँ पे लैंड पार्सल नहीं है। हम्म, बट धोलेरा में आज की रेट में लैंड पार्सल, आप बोल रहे हो इतना बड़ा लैंड पार्सल है, हम्म, 942 हम्म, स्क्वायर किलोमीटर, तो वो बहुत बड़ा लैंड पार्सल ऑलरेडी है उनके पास। तो हम्म, जहाँ लैंड पार्सल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वहाँ भी रेट ऑफ एप्रिसिएशन थोड़ा सा कम रहेगा कंपैरेटिवली। सर बिल्कुल ठीक पॉइंट है। इसलिए यहाँ पर सर सिर्फ 18% ही टोटल लैंड है जो रेसिडेंशियल का है। स्टिल यहाँ पर इस 922 स्क्वायर किलोमीटर में सर मैं आपको बता दूं, ओनली 422 स्क्वायर किलोमीटर इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट, एंड रेस्ट 500 स्क्वायर किलोमीटर इज कंप्लीटली ग्रीन जोन, कंप्लीटली। ठीक है। सो 422 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है, और उस 422 के अंदर आपको रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, आईटी, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, सोलर, ये सारी चीजें भी करनी है। एंड 18% इज ईयरमार्क्ड फॉर द रेजिडेंशियल। 18%। 18% इज रेजिडेंशियल उस 422 स्क्वायर किलोमीटर का, 422 स्क्वायर किलोमीटर का। 422 हाँ, 18%। इट्स अबाउट 8 स्क्वायर 18%। किलोमीटर्स हाँ, रफली। तो उतना ही एरिया है जो आर जोन के लिए रखा गया है। बाकी वहां पे ऐसा नहीं करवा सकता कि मैं इंडस्ट्रियल में जाके सीएलयू करवा लूं और रहना शुरू कर दूं। दैट इज कंट्रोल्ड। ओके। ओके सर, एक क्विक क्वेश्चन फॉर नाउ, लेट्स टॉक अबाउट दिस मरीना बे जिसके लिए हमने सेमिनार अटेंड किया था। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो प्लॉटिंग्स आपने बताए थे, आई थिंक देयर आर सम सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच आर देयर। व्हाट विल बी द पेमेंट प्लान एंड व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्री? ये सब ब्रेकअप्स आप कैसे बताओगे, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट इट। लोन जैसे आपने बोला कि देयर इज नो लोन, so it will be entirely full down payment, हम्म, right? But is it structured? Is it like some sort of a development linked, or will it have the entire payment will have to be done in a single mode? तो इसमें आपका जो फुल डेवलपमेंट टाइम होता है वो अपने पास में आइडियल 30 डेज होता है, लेकिन हाँ 15 दिन की और फ्लेक्सिबिलिटी हो, 45 डेज के अंदर अपने को फुल पेमेंट होता है। और रजिस्ट्री की Okay. कॉस्ट की मैं बात करूं तो इट इज 4.9% ऑफ द स्टैम्प, मतलब स्टैम्प ड्यूटी 4.9% होता है इन केस ऑफ फीमेल। इन केस ऑफ मेल इट इज 5.9%। एंड देर आर टू अदर चार्जेस। एक होता है आपका लीगल फी, जो 15,000 रुपये पर प्लॉट फिक्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, मतलब हम जो मर्जी साइज का ले, जो एडवोकेट को हम देते हैं फॉर रजिस्ट्री, 7/12 में एंट्री करवाना, ऑनलाइन करवाना, म्यूटेशन करवाना, एंड डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट।
एंड दूसरा होता है इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एज वरुण ऑलरेडी सेड कि ये 100 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का है, तो 200 गज का प्लॉट लिया तो 20,000 रुपए हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि 5 साल के लिए एक ही बार होता है। तो ये हमारा इसमें। Okay. All right, for that we can connect individually also, but Right. we will look forward to having some real-time pictures. या और ये जो मरीना वे के लिए जिसके लिए आपने सेमिनार किया था, इसका जो अभी तक का पूरा डेवलप प्लान है, which will also give some pictures projection of as to how the community is going to be looking like. एक architectural view होता है, एक वो भी आप प्लीज एक बार शेयर करिए, so that helps in डेफिनेटली building our सर, ये perspective into it. हमें बहुत कम समय मिला था इस पे वर्क करने का, और डेवलपर ने हमें बहुत सपोर्ट किया इतने कम टाइम में ये सब चीजें करने का। तो डेफिनेटली आने वाले 5-7-10 दिन में मैं आपको इन सब के रेंडरिंग्स वगैरह भी सब प्रोवाइड कर दूँ। All right. जो लोग दिल्ली इवेंट में आ रहे हैं 21 दिसंबर को, सो मैं चाहूंगा कि जितने लोग आस पास में हैं वो जरूर आए। तो धोलेरा से भी टीम रहेगी वहाँ पे, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द इवेंट, सो वहाँ की टीम रहेगी और वरुण भी रहेगा। तो जितने भी इन पर्सन क्वेश्चन किसी को पूछना है तो दे कैन मीट द टीम एंड आस्क एनी क्वेश्चन। और किसी को भी नंबर चाहिए वन मोर, आई विल शेयर वरुण's नंबर एज वेल। और एक चीज हमने सर और रिक्वेस्ट करी है हमने डेवलपर से, हमने डेवलपर को खुद इन पर्सन इनवाइट करा है कि वो आए, और कोई किसी के 1-to-1 क्वेश्चंस होते हैं and he want to meet, need to know much more clarity on Dulera, so he is also trying to join us on 21st for a very short time, but yes, he will be there. वरुण, ये जो प्लॉट्स जो है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट, इनमें अभी एट प्रेजेंट एफएसआई कितना होता है? Sir, we can construct first for ground first and second. ओके, May I All know who is asking the question? Achal. Sorry. Okay, yes, sir. Okay. Yeah. Okay. Okay. Ground first, second हम इस पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। All right. और किसी का क्वेश्चन कोई? तो ये तो एक दुलेरा का हुआ। इफ एनीबडी वांट्स सम एनी रियल एस्टेट एडवाइस, सो आई विल ड्रॉप डाउन माय नंबर, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी। ऐसे मेरे जिनका वरुण ने काफी हेल्प किया है एनसीआर में रियल एस्टेट में, दे आल्सो हेल्पिंग मी आउट। तो किसी को भी कोई कांटेक्ट करना हो, दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू वरुण। अपना नंबर उसने चैट बॉक्स में दे दिया है। मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने पर लोग मंजीत सर को काफी लोग जानते होंगे, सो उन्होंने मेरे से इन्वेस्टमेंट करी हुई है, सो ये सीन ऑलमोस्ट डबल द ग्रोथ इन लाइक लेस देन 2 years। प्रदीप जहांगीर सर हैं, उन्होंने मेरे से काफी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मल्टीपल नेम्स आर देयर। It's always good to connect with. Thank you, Varun, and thank you, Lokesh ji and Shilpi from the team for joining the session, and thank you all the seniors. Thank you. और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो we'll be happy to Varun to answer. किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो then now is the time. We are almost at the end. Sure. Prateek ji, I'm sorry, I joined the seminar a couple of minutes late. I think I missed your introduction. Are you from the developer, or are you also a part of the marine community? I'm a DMET alumni. Okay. 2011 pass out. All right. Okay, great. चलिए, ओके सर, Thank you guys. We'll see you next week. Thank you. Saturday को मिलते हैं सब लोग दिल्ली में। Thank you. Thank you very much. Thank you everyone. Bye, Thank you. everyone. Okay, thank you guys. Thank you, Shailesh.